अपने बर्थडेज पे केक बनते थे जब Yeah. 2015 में आए थे। आई थिंक पहला बर्थडे मेरा था और तभी केक्स तो पता नहीं था, तो आइसक्रीम केक लाया था और ये लोग आइसक्रीम केक ले लेके लगा रहे थे। In terms of festivals, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता था. First ever hangouts for us together was the Diwali potlucks. फ्री का खाना है तो तैयार होके चले आते थे कुर्ता उड़ता पहन के। We also adopted new festivals too. फेस्टिवल है यार कि लोग बाहर है ठंडी शॉपिंग में करने के लिए। ठंडी में हाँ ठंडी में Sunday way. ये कैसे सेलिब्रेशन हो गई है? I remember Americans also used to like enjoy, Hmm. especially the Holi. So they really like dancing also to the Indian songs and celebrating. Americans also need an excuse to wear Indian ethnic clothes anyways. कि थैंक्सगिविंग के दिन शॉपिंग तो करना ही है। और मेरे को अभी भी याद है हम लोग गए थे 2018 2019 के थैंक्सगिविंग के टाइम पे हाँ। कि मिहित तरह कुछ तो राजमा बनाया था स्पाइसी स्पाइसी राजमा। Raj. तो सीक्रेट सेंटा वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। स्मॉल विक्ट्रीज इवन एकेडमिकली, लाइक किसी का क्वालिफायर हो गया है, प्रीलिम्स हो गया है। इट्स एक्चुअली अ बिग पार्ट ऑफ व्हाई वी आर आल्सो क्लोज टुगेदर कि हाँ जनरली दीज थिंग्स आर सेलिब्रेटेड विद फैमिली इंडिया में, Yeah. राइट, व्हेन यू आर स्टेइंग विद फैमिली। बट जब तुम इतना दूर हो and you're celebrating with a bunch of people and they are your family now. I want to point something out कि मेरे WhatsApp पे ना अभी भी आई थिंक 50 ग्रुप है जो मिहिर ने create किया। तो अपना अपना स्ट्रगल जो भी है लड़ते रहते हैं एंड सेलिब्रेट भी करते रहते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि वो लोग सेलिब्रेट भी करें अपने साथ। बट इट्स फन, राइट? डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट विथ योर फ्रेंड्स हु आर योर फैमिली इन यूएस। Hello, listeners. Welcome to our new episode of The Crestu Theory. And the reason why we call it The Crestu Theory is the shared experience जो हम सब लोग ने महसूस किया है when we were staying in very close proximity and during our very demanding PhD program at Purdue. तो उसके वजह से हमारे सबके बीच में एक ब्रदरहुड है एंड जिसने हमारे एकेडमिक सक्सेस ले लो या फिर कल्चरल एडेप्टेशंस ले लो और हमारे सबके ओवरऑल वेलबींग, तो इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है ये साथ में होने का। और इसके वजह से हमारे जो सोशल बॉन्ड्स है काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। हम साथ में डिफरेंट सेलिब्रेशंस करते थे और काफ़ी टफ टाइम भी था बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया। सो ऑल ऑफ अस ग्रू इवन क्लोजर टू ईच अदर बिकॉज यहाँ पर हमारे जो फ्रेंड्स है वही हमारा फैमिली होता है यूएस में। सो ये एक पूरा जो एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ था पर्ड्यू में, तो उसने हमारे लाइफ में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड आज हमारे साथ काफ़ी हमारे सब फ्रेंड्स है हु आर स्टेइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूएस एज वेल एज वर्ल्ड। सो as I can see on my screen, we have Ranga joining us from Europe. We have Radha. We have, who is a new guest for this podcast. We have Swapnil, who is also another new person we have. We have Kaustab, we have Abhijit, we have Harshal, we have Tarun, and we have Dishan. So hello and welcome everyone And to we the have new Meet. episode. Hey, and since we have Radha and Swapnil, would you like to say something about yourself, your background, and how you connected with us? Yeah, so hi, I'm Swapnil. I came to Purdue in 2015. That time it was just me, Abhijit, Harshal, and one more friend, Varad. So we came in 2015. We all were in same alma mater in Mumbai ICT, and coming here together was like a big change for us. After coming here, I think for 2 years we were just four of us, not too many other people like that are currently on the group. But then when Mihit and Kaustubh joined us in 2017, I think that's when the whole Crestview thing started, and the whole Crestview theory or the Crestview group became a big part of it. And then after that, I stayed there till 2021. And after 6 years of spending at Purdue, now I've moved out and I'm in like an Oregon doing a job. So yeah, Thank you for joining, Swapnil. thank you for having me.
the second special guest that we have today is Radha Krishna from IIT, and he has been with us for almost 8 years since I joined Purdue. So, Radha, if you want to give your introduction and how you connected with us, that would be nice, and what you are doing right now. Sure. Hello, everyone. My name is Radha Krishna. I joined Purdue back in 2015, and it's been almost like 10 years since I met everyone. Like everyone, I also moved out of India for the first time in 2015, and being in this group really helped me out. It didn't feel like I was staying away from my parents and family at all. Having this circle really helped me out. And after Purdue, I moved out for my job, and right now I'm doing research in energy systems, and I've stayed connected with everyone, and it's been Awesome. great. It's been great. सही है. So I think Radha is now pseudo ICT, I would say. सब लोग यहाँ से ICT से है, and Radha has been with us for almost, as you mentioned, 10 years. So तो it मैं has कहाँ been से आया? great. और हाँ, तरुण तो यार तरुण भी ICT से नहीं. तरुण भी Tarun, ICT we का ही just है. forget that you are not from ICT. हमको लगता है तरुण ICT का ही है. Moreover, Sorry. Dishan, Sorry, तरुण Dishan का भी भी ICT का नहीं है ना? I am also है from ना. ICT. I did my master's MTech. over there. Like Abhijit, yeah, both of them, masters. And Harshal. And Harshal. See, Awesome, तरुण awesome. अभी वापस एपिसोड everyone 1 पे thinks जाके that we देख के आओ all did सब. undergrads in ICT. सही है. So, today let me set the stage. So आज हम बात करेंगे हमारे different academic milestones के बारे में. और हमने जो अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेशंस किए हैं एंड एवरीथिंग इन बिटवीन दोस थिंग्स. सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट सेगमेंट जहाँ पे हम बात करेंगे कल्चरल एक्सचेंजेस एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेटेड. So let me ask Kaustav, so what were the different festivals that you celebrated at Purdue? In terms of festivals, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता था. I think since the moment we landed in Purdue, there were so many things going on back to back, Mhm. especially for new students. But I think as a group, I think one of the first ever hangouts for us together was the Diwali potlucks. I think that was what I think brought all of us together. I think it was because a lot of there was a whole community of people who were like from previous batches in ICT. There were several people there, and I think I remember very clearly कि वो टाइम पे मजा इसलिए आया था क्योंकि हर्षल कैमरा लेके आया था और उसने अच्छे फोटोज खींचे थे. Yeah, I remember. वो पहला टाइम था जहाँ पे अच्छे फोटोज आए थे. एंड कौस्तव एकदम शादी का जोड़ा पहन के आया था. आई रिमेम्बर दैट. एकदम हेवी. Probably कौस्तव के पास वो एक ही आउटफिट था. स्टार्टिंग में हाँ, बट उसके बाद आए बाद. But I think that was the first, I think, major celebration that I was a part of in ICT. And I was also very surprised to find out later that there was also a very thriving community of Bengalis there. And then they used to have their own Durga Puja, which was very, very surprising to me. And then I thought, अरे दुर्गा पूजा है, चलो चलते हैं. तो मैंने काफी लोगों को मतलब लेके गया था वहां पे. और फिर बहुत अलग था क्योंकि दे डू ऑल द 5 days 5 to 6 days in like one day. तो ऐसे जाओ कि 7 बजे से पंचमी स्टार्ट होता है, उसके 1 घंटे बाद षष्ठी बोलते हैं हम 6-7 डे. तो ओवरऑल आई थिंक वहाँ पे मेन का ऑब्जेक्टिव था खाना, एकदम शुद्ध बंगाली खाना. सुबह भोग जो चढ़ता है हमारा, सुबह लंच में और डिनर में दोनों टाइम. एंड I think those were the two main celebrations I would say in my first semester, जो काफी which made a lasting impression. अच्छा. And what about you guys, Abhijit,
Harshal, and you know, four of you came early, Radha and Swapnil. So, तुम्हारे मतलब how did this whole celebration of festivals, was it existing before you guys came, कि तुम्हारे आने के बाद तुम लोग ने decide किया कि कुछ start करते हैं? Tarun was also, I think, joined during the same time, right? But he Yeah, was in a Tarun parallel se, universe. yeah, Tarun se we did not meet at that Correct. particular time. I think Yeah, we yeah. connected a few years down the line. Correct. Potlucks definitely the. I still remember पहला potluck जहाँ पे स्वप्निल, हर्षल, वरद और मैं गए थे, and we'd cook some gulab jamuns. Obviously, they became like tennis balls at the end of the day. You could literally throw them, and they would bang the wall, maybe have a crack at the wall too. So Diwali se start हुआ था basically. Is that what you are saying? No, this was No. first actually was just an introduction potluck. But no, regarding the festivals, what were the festivals that you started with? Yes. So where I was getting to was कि potlucks बहुत special रहे, and it's something that I was not used to much when back in India. But yeah, and then meeting people, it used to be much easier because if you have a bigger group, if someone's getting some food, it reduces the effort that you have to put. So first celebration जो हमने किया was definitely Diwali, and it was a big one, I would say. Like we four used to love hosting people, and उसमें फिर तरह तरह के खाने बन रहे हैं. स्वप्निल कैन टॉक मोर, बट हमारी ऐसे पूरी प्लानिंग कमेटी होती थी चारों के बीच की ये पॉटलक में 3:45 की तरफ से क्या खाना जा रहा है, एंड देन दैट डे ऑफ पॉटलक एंड द डे बिफोर उसकी शॉपिंग, फिर उसकी तैयारी, एंड देन क्लीन अप. So Harshal was head of our cleaning committee. तो बहुत मजे किए. But yeah, the first one I would say was Diwali, and it remained special after that for every year, I would say, because the fun part of it was हर साल नए लोग आते गए, so you had more to look forward to, more people to interact with. It was a good common ground for you to just meet, relax, have some good Indian comfortable food that everyone loves within this group, and just connect. काफी लोगों से first time अच्छे elongated conversations ये potlucks पे हुए. Yeah, I think like meeting people other than your group in big potlucks is something where you are like, you get to know other people which are not like on professional level, like your seniors or like your other department friends or their friends. So your circle becomes a bit bigger. You get to know, share experiences which are not only school related or like like study related. You get to know that person a little bit more like on other levels. So like those, like in general, potluck brings you that, and then in festival, yeah, I think Diwali was something because that was the first thing we hosted. I think we also had like Marathi Mandal where we used to go for like Ganpati festival. That's something also Purdue has. Um, but we didn't host it. We just became a part of it. Like went there for like a day and then like celebrated that, had aartis and pujas and stuff. But as a group, like as a four of us, I think Diwali was our first like big event where we started hosting people, and then it was blast. Like even like we decorated our house and with Yes. those diyas and all. Like it was very like interesting thing to do it on like on your own for the first time away from India, right? So And So this, was this go ahead. so was this something that you all started, or was this something, even your seniors did for you? Or did you take the initiative to, start it for first time? No, I would say in a way there might have been some kind of celebrations around our festivals. It's just that around once we started hosting, that's where I think like that was a different ज़्यादा लोग आने experience लगे. for us. More people started coming. अच्छा. And then like I remember पहला बड़ा दिवाली potluck was when Ranga and ये लोग आए थे. अच्छा. That was in 2016. तब we had a very big group बराबर. जो घर आए थे, and then we went outside, took some nice pictures. That Diwali was, I would say, one of the special ones to begin with. Then उसके बाद फिर वो tradition ही बना, like
वो दिवाली में काफी ऐसे हुआ कि वी रियलाइज कि पीपल हैड अ ग्रेट टाइम, एवरीवन commented the same thing. देन उसके बाद से वी थॉट ओके, इफ नॉट एनीथिंग एल्स ये एक ट्रेडिशन रखेंगे कि विद इन आवर ग्रुप ये एक अच्छा पॉटलक इवेंट बनेगा. अच्छा, nice, nice. Tarun, what different festivals did you celebrate? Like I remember celebrating Holi event with you. We had all worn those fancy free glasses that we Yeah, used to yeah. get. Uh, yeah. बट आई थिंक पहला ये ग्रुप के साथ मेरा पहला वाला था कि 2017 का दशहरा टाइम, अच्छा. जहाँ पे हम लोग गरबा करने चलते थे. याद है? अच्छा. Hmm. हम Yeah, लोग yeah. मैं शायद सबसे मतलब एज अ बिग ग्रुप मैं सबको पहले बार गरबे पे मिला था, अक्टूबर अच्छा. 2017. तो Okay, okay. वो टाइम पे तो लोग सज धज के आते थे, नाचते थे. मीत तो हर गरबे पे मचाता था. तो उसका अलग ही एपिसोड बना सकते हैं हम लोग, मतलब कि मीत के कारनामों पे मतलब एक एपिसोड बन सकती है. ज्यादा लोगों को इनवाइट करना हाँ ही चाहिए ना. या हाँ. तो मतलब वो काफी सही टाइम होता था, क्योंकि हम लोग एज सच इंडिया के बाहर आने के बाद मेरे फर्स्ट 2 साल में इतना ज्यादा फेस्टिवल के सेलिब्रेशन नहीं हुए थे. मतलब हम लोग पॉटलक्स नहीं करते थे. मेरे दोस्त के ग्रुप जो थे, आधे लोग को खाना बनाना नहीं आता था, और आधे लोग को तो मतलब बाहर जाने का प्लान होता था. तो हम लोग अगर आप, इफ यू गाइस रिमेम्बर, देयर इज समथिंग कॉल्ड ICMAP, Indian Cultural and Music Association at Purdue. So they used to organize some events दिवाली के टाइम पे एंड दशहरे के टाइम पे. लाइक ऑडिटोरियम्स में दे हैड सम शोज, फूड रहता था. तो फ्री का खाना है, तो हम लोग मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, तो आधे लोगों के पास फंडिंग नहीं था, तो फ्री का खाना है तो चले जाते हैं. तो तैयार होके चले जाते थे, कुर्ता उड़ता पहन के खाना खाते थे, वहाँ पे लोगों को मिलते थे, और वापस घर जाके मतलब वहाँ पे हम लोग पत्ते वत्ते खेलते थे. तो वो हमारा सेलिब्रेशन हुआ करते थे मास्टर्स के टाइम में. बट पॉटलक एज सच ये ग्रुप के साथ ही शुरू हुआ. मैं दिवाली फर्स्ट टाइम में दशहरे में मिला था सबको, उसके बाद दिवाली पे बुलाया था मेरे को, तो मैं पॉटलक में आया था. तो उसके बाद वो ट्रेडिशन ही बन गया कि लाइक हर दिवाली पे पॉटलक तो होना ही है. और मेरे को अभी भी याद है, एक दिवाली के पॉटलक में, वो मेरे बर्थडे के टाइम के आसपास था, मेरा था. आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर. Yeah. और वही दिवाली पे अभिजीत ने और मतलब 345 के लोगों ने कीड़ा मचाया, जो जो चाट गुलाब कीड़ा. जामुन बनाए हाँ. थे. Gula. Okay, तो okay. गुलाब जामुन में कितने गुलाब जामुन में आपने मतलब चार एक पांच नहीं था, I don't चार पांच remember थे the number. हाँ, चार चार पांच पांच काफी सारे गुलाब थे. जामुन के बीच Definitely में multiple, मिर्ची डाल because दिए I थे, also had one of those. लाइक हरी मिर्ची. और ये यश देख रहे यश थे को कि भी एक आया था, आई रिमेम्बर. हाँ हाँ. किसको आएगा. तो लकीली मेरे बर्थडे के टाइम पे मेरे पे नहीं आया, तो मैं थोड़ा सेफ था. Hmm. बट हाँ, तो लाइक दे सेलिब्रेशंस वाइज पर्ड्यू में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लाइक बाहर जाने के भी और खुद के ग्रुप में भी. एंड इतना बड़ा कम्युनिटी है पर्ड्यू में कि देर आर स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, दे डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर. बट एज सच देर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आल्सो हेल्प्ड टू काइंड ऑफ क्रिएट. आई स्टिल रिमेम्बर मराठी मंडल. हाँ हाँ. गणपति के लिए मैं Correct. फर्स्ट टाइम वहां पे गया था, क्योंकि मेरे ग्रुप में 2 मराठी लोग थे. तो देवर लाइक, अरे वहाँ पे ये गणपति लगते हैं. तो हैदराबाद में तो आई वाज लाइक वेरी यूज्ड टू हैविंग 10 गणपति इन लाइक 2 स्ट्रीट्स. हाँ. और या. पर्ड्यू में आने के बाद फर्स्ट ईयर में आई वाज लाइक, अरे यार आई एम मिसिंग दिस. Yeah. तो लोग ने करेक्ट. बोला कि अरे चलते हैं चलो. तो वो सही लगा मेरे को वो टाइम पे. एंड देन गरबा, एंड देन दिवाली, और उसके बाद होली. मतलब होली आधा टाइम फ्लॉप हुआ करता था, क्योंकि मार्च में ठंडी रहती थी या. Correct. होली के टाइम में, दैट आई वाज राइट. गोइंग टू बट टेल अबाउट दैट कि हाँ यहाँ पे यूएस में फेस्टिवल्स जैसे होते हैं, दे आर लाइक सेलिब्रेटेड एज पर द कन्वीनियंस. वीकेंड वगैरह पे हुआ करते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू द वेदर Hmm. होता है. लाइक अभी मार्च में होली इज कमिंग, राइट? बट या, गो अहेड, गो अहेड. तो उसके बाद हम लोग मतलब वही 2018 2019 होली भी खेले थे. तो सेलिब्रेशंस आर समथिंग्स दैट गॉट अस इवन क्लोजर. तो मैं वो बोलता हूँ कि
अगर हम लोग सिर्फ दोस्त रहते और सिर्फ खाने के लिए मिलते तो उतना नहीं, मतलब ये पॉडकास्ट शुरू नहीं होता अगर हम लोग वो सेलिब्रेशंस में नहीं जाते। तो वो मैं बोलता हूँ कि दैट्स एक्चुअली अ बिग पार्ट ऑफ व्हाई वी आर आल्सो क्लोज टुगेदर, कि um, जनरली दीज थिंग्स आर सेलिब्रेटेड विद फैमिली इंडिया में, या राइट, व्हेन यू आर स्टेइंग विद फैमिली। बट जब तुम इतना दूर हो and you're celebrating with a bunch of people and they are your family now, so it makes us all even more closer. What yeah, was the in fact, good? yeah, एक और चीज like within 345 Chauncey, like we used to make sure that no matter how big or small that festival is, we would always celebrate. तो साल के दिवाली जैसे लाइक होली पे भी स्पेशल खाना बनता था, लाइक वी मेड पूरन पोलीज, वी मेड मोदक्स अराउंड गणपति, गुड़ी पाड़वा, लाइक आवर न्यू ईयर, एंड देन अ लॉट ऑफ दीज स्मॉल फेस्टिवल्स उतने ही एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते थे, जितने लोगों को इनवाइट कर सकते थे वी यूज्ड टू इनवाइट। Even बट like I I remember we did like as small as like a Kojagiri Purnima. That's like the yes, smallest thing. And like we made the doodh and all that, and like we invited like just like the neighbors, like our like Siddhi and I think Nivedita. But yeah, like we did yeah. like every small thing as we could just to be like feel like we are still, like enjoying the Indian culture and in like the festivals and still like because what happened like in India, you all those festivals happen one day earlier. You see pictures coming on your WhatsApp group, you see all those videos, and then you are like, yeah, we want to do this, and then you do it with your family here. So that's like a very nice, yeah, nice phase. I So think one thing we that I would say also is good. right. So I just wanted to point out here that we not only celebrated like the festivals we used to celebrate back home, we also adopted new festivals too. Yeah, we will come. Um, Yeah, we'll come to yeah, those. so I think those were also kind of a big glue that bonded us together, especially during Christmas and everything. We got our own traditions for Christmas now. So Nice. आई रिमेम्बर 345 का हम पहले बार होली खेलने गए थे, पूरा जैकेट, ग्लव्स, मफलर, टोपी वोपी डाल के परडू के ग्राउंड्स पे, अरे बाप कि रे। कलर लगाने के लिए जगह ही नहीं जगह ही नहीं। और गए थे बहुत ठंडी में, बहुत ट्राई किए होली खेलने का। ऑब्वियसली पानी नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज Yeah. ठंड में पानी से कौन होली खेलेगा। बस कलर लगाए थे 2-3 मिनट और फिर 5 मिनट में लगे चल यार नहीं हो रहा I तो think 2018 wala Holi was good क्योंकि उस दिन it was good weather. It was I sunny. mean, It was basically the sunny. Yeah. festival को हम move करते थे, right? Instead of the committee used to move the festivals March में, since it's too cold, April end या तो फिर कई बार early May में करते थे, so that the weather is good. And then ground पे they would put the speakers and colors भी वो लोग ही लाते थे, I think. And then they Yes. used to throw the packets while people are dancing to the sound of music. So it was, और yeah, it, होली होली को पोस्टपोन ज्यादा नहीं कर सकते थे वो लोग, तो जनरली वो मार्च अप्रैल में ट्राई करते थे, पर ठंड तब तक भी नहीं जाती थी, तब तक भी हाँ, ठंड रहती थी। used to तो आई be. थिंक या Yeah. I But I remember like remember go for I remember Americans also used to like enjoy, especially the Holi. Yeah. A lot of people yes. used to come and enjoy that. So Holi was like very interesting thing, na? Matlab, you will not see that in, let's say, in any other country. So they really like dancing also to the Indian songs and celebrating it. So I really like just getting to see that they are also enjoying these Indian I think festivals. Americans also need an excuse to wear Indian ethnic clothes anyways, चाहे वो हैलोवीन में हो या होली True, में true. हो। हाँ, yeah, मतलब yeah, it's a rich clothing and everything, right? Yeah. So उनको कुर्ता वगैरह पहनने का उनको अच्छा बहुत लगता है, एक्साइटमेंट रहता है वो एक्साइटमेंट पहनने होता का। है, Yeah. Yes. yes. And Holi, which is like our festival of colors, and Diwali, which is festival of lights, दोनों बहुत famous है यहाँ के communities में, तो they also openly celebrate these festivals with you, तो काफी Thanks मजा आता for है having. describing what Holi and Diwali are. हाँ, पर यहाँ के लोगों के लिए they might not associate Holi with unless it's like festival of colors नहीं बोलते, तब तक काफी लोगों को समझता नहीं है, तो yeah. सही एक है। अच्छी चीज है यहाँ के लोगों की वजह से ऑर्गेनिक कलर्स आते थे जो धुल जाते थे
easily. और ये उनको आदत ग्राउंड सब भी एकदम क्लीन करना पड़ता हाँ था, राइट? दे कैन नॉट एग्जैक्टली They तो cannot क्लीन। इंडिया में do मैं होली इतने बार खेला हूँ, कभी कभी ऐसा था कि कलर निकलता ही नहीं था। 2-3 दिन मतलब निकलता दो है। तीन हफ्ते भी नहीं निकला था, एक दो बार। तो इधर ऐसा होता था, कपड़े भी मतलब तुम धो लो वो कलर निकल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात थी कि like because of other people they had to do organic colors. Yeah. मेरे को तो रंगा एक्चुअली का ये लुंगी पहनने का याद आता है। रंगा यूज्ड टू वेयर लुंगी। Whenever there is an option to wear the Yeah, lungi, तो traditional. दिवाली पे भी पहनता था कल। Yeah. लुंगी या एक्चुअली धोती? मेरे को आई हैड अ लुंगी क्वेश्चन फॉर लुंगी दिशान। जैसे हमारा लाइक 3:45 का पॉटलक होता, पूरा ऐसे कमिटी बैठती थी हमारी एक दो दिन पहले। सिंस यू धवल मिहित वर रूममेट्स एट सम पॉइंट, एंड आई रंगा। वांट टू नो कि क्या कैसे डिसाइड होता था कि क्या बनना है, क्या होना है, हाउ वुड थिंग्स बी अराउंड द पॉटलक? हाँ, हम लोग भी एक्चुअली ऐसे ही डिस्कस करते थे प्रीवियस डे पे कि क्या बनाएंगे पॉटलक पे. And I remember, I think the first time when we had a potluck together, I think we made dabali, if you remember me. यस There यस was something we also wanted to add, like a little bit of a flavor of the state where we come from and the cuisine that we generally are used to eating. And also, I was craving dabali, to be honest, because I really like it. I was like, let's make it, and yeah, so that was one of the things. But yeah, potlucks were really good because we got to eat food from different types of cuisines, and everyone would bring something. So that was fun. And I think for me also, one of the first memories of celebrations and getting to know a lot of people was Diwali celebrations. I remember during my first semester, I think we went to Ravi's and Ishan's place. I think they invited us for Diwali celebrations. हाँ And then we had, I don't remember if it was potluck. We probably ordered biryani from Shaukin. Shaukin was called शौकीन before से it. मंगाए थे We बड़े ordered भैया। biryani. Yeah. And that's when I got to meet a lot of people for the first time, actually, because I knew some of you, but then a lot of people who had joined Purdue before me, I didn't really know a bunch of them. So I got to meet them over there. And I still remember some beautiful pictures that we took that day. So that was a fun celebration. And in this first semester, another couple of celebrations that I remember were one Navratri, because like coming out of Gujarat, having the chance to play Garba outside of India is amazing. So that was something I was looking forward to. And then Mihid obviously is a very passionate about dancing and Garba. डांसिंग So गरबा that या it was really fun to Or is get a passionate part about हम to लोग do Garba. dance with. सब लोग जाते Passionate थे about a lot of Or other is things. passionate about going to Garba. गरबा। यस यस आई थिंक For good फर्स्ट reasons. टाइम जब हम गए थे क्या था, बीटीसीसी नाम था ना? BTS BTCC Temple, I think भारतीय Cultural Bharatiya Center. Temple Cultural 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 सेंटर। Yes. Center. वहाँ पे हम लोग आई थिंक फर्स्ट टाइम गए थे, तो हम काफी लोगों को नहीं आता था गरबा। But I think by the end of that few hours, most of the people were dancing to the tunes of Garba, and Yeah. उसमें भी वो And कुछ steps जो Sunday though. repeat Sanedo Sanedo। Panedo, yeah. Tornado. यार तो मिहित हमेशा एक स्टेप सिखाता था, सब सीख जाते थे तो दूसरा चेंज कर लेता था। तो चेंज हाँ, हो change कर लेता था. That was so हाँ annoying. हाँ, बाय द तो टाइम आप भी सब सीखे सीखते ना। गाना चेंज हो जाता Sure. हाँ, हम्म। तो बोलता है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट राइट, उसके बाद होता है राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। Like we were all dancing like engineers, like 1, 2, 3, 4, 5. हाँ right। सर अभी भी Yeah, वैसे ही that was सिखाता हूँ fun. सबको। I still remember ये गरबा के बाद हम सनेडो पे इतना नाचने लगते थे, ऐसे रैंडमली हमारे हैंगआउट्स पे भी हम सनेडो पे नाचने लग जाते थे. हाँ. सही है सही है। आई मीन वो काफी अच्छा Also, या हम वी आई मीन बिकॉज हम लोग सब साथ में थे आई थिंक, तो फैमिली थोड़ा कम मिस होता था, स्पेशली ये फेस्टिवल्स पे। एंड right. ये सोशल बॉन्ड इनको ब्रिज करने में काफी आई थिंक यूजफुल रहा था इस डिस्टेंस को। या Yeah, I think growing up, we always celebrate festivals with family, right? फैमिली So when करेक्ट। we step outside of our houses, we sometimes feel a little sad that, especially on a day of festival, we feel like, hey, we wish that we could be with our family. हाँ And if we are in some city in India, we could travel back
and spend time with family during festivals. But especially being out of India, it's not always possible to celebrate all festivals with family. So having a group of friends who make it feel like we are all family together, it made a lot of connection. That's probably, like Tarun also mentioned, that we developed a lot of deeper connections during festivals. So yeah, and no enthusiasm, like specifically like first couple of years and moving forward to छोटे festivals be celebrate karna, like having set of people around you that value your affection or your likely like what do you like about these smaller festivals too. I think that's what made us come closer and connect with each other even more. A special mention that I want to give, we celebrated all the different festivals. One that was festival and as well as something that was, for me, abstinence from different thoughts and from social media, as well as body purification, right? तो वो था पर्यूषण. तो पर्यूषण is a Jain festival जिसमें I mean lot of food wise we have restrictions. We try to think other than normal. Other than normal. तो especially यहाँ पर जैन फूड बनाना मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली पर्ड्यू एरिया में. तो एवरीडे कुक करते थे. यश था तो दैट वाज आई मीन यश के वजह से आई वाज एबल टू कंटिन्यू फॉलोइंग द जैन फेस्टिवल दैट आई वाज Yash फॉलोइंग. definitely deserves a special mention. Yash is one of like वो यहाँ the student. Yeah, आने one के of the बाद students who did masters here with us at Purdue. एंड उसने मतलब अभी भी मतलब वहां पे आने के बाद भी जैनिज्म पूरा उसने ऐसे फॉलो किया, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन वाइज. लाइक दैट वाज हेड्स ऑफ टू हिम. बट द थिंग इज उसने जो लाइक 8 दिन का फेस्टिवल होता है, तो वो 8 दिन के लिए जो हमारे विधिज और जो श्लोक्स वगैरह जो बोलने होते हैं, मंत्र बोलने होते हैं, मुझे इतना नहीं आता है बट यश को आता था और वो फॉलो करता था. तो उसके वजह से आई वॉज एबल टू फॉलो दैट फॉर दैट 8 days एंड मेरा वो ब्रेक नहीं हुआ कभी भी. इवन व्हेन ही मूव्ड अवे, हम लोग स्काइप पे वी यूज टू डू दैट इन द इवनिंग. एंड फिर 8 दिन के बाद आई यूज टू कुक डिफरेंट थिंग्स एंड देन इनवाइट यश कि भाई आजा, मस्त खाना बनाया, वी विल ब्रेक द फास्ट टुगेदर. तो इट वाज अ गुड ब्रेक फ्रॉम द नॉर्म बाय फॉलोइंग दैट फेस्टिवल एंड आई वाज एबल टू डू इट. सो इट वाज thing that I still remember. Like one thing about celebrating festivals in US was like for India, if you're in like metro cities like Mumbai, Pune, or like you have different communities, so you get to see these things. But if you are from some small village or small town, there is not like Bengali people there are not like Gujarati people there. So when you come to US, like I got to like Garba, like one of the thing, like or like Durga Puja from Bengali people, like you get to experience all these things, or like you never get to like you have like more festivals than what you had from your own Indian family, but now you have like different cultures. Or even like learning about these what's the word you guys said during Parushan? The Michhami Dukkadam. Things like this, like you get to like say these things, like learn about those things, and that's like a good like a thing about coming to a US and then meeting Indian community here compared to staying in one town in India. And then like nowadays, of course, there is social media, you get to see things much easily, but experiencing it on first hand is something very unique about being away from India. So you're learning the culture of it. Yeah. I think Ranga, what you're trying to say is that you're learning the culture of other parts of India when you go outside India, right? Exactly. But I think that's the beauty of especially US. I think not just India, people from all across the world, we get to interact with those people. And I think growing up in a homogeneous society, we all have some stereotypes about other cultures, other countries, and people from other places, right? But when you meet them, interact with them, become friends with them, we realize that deep down, everyone is the same. We all value similar things in life. We value relationships, we value money, we value certain things in life which are more or less similar for everyone. And that actually helps us expand our thought process, evolve in terms of how we think, break those stereotypes. So yeah, that's really, I think that's how we became amazing friends. Like,
if we had stayed at one place, we could have probably not even interacted with people from other parts. Dishan actually brought a very good point that यहाँ पे आने के बाद we also started learning about other cultures and when and Kaustubh initially initiated right कि हमने एक दूसरे set of festivals को भी अपनाया. So and that's when I would like to move towards our next segment was कि हम यहाँ What a पे segue. which one? What a What a segue. segue. segment Segment. What Yeah, a no, I'm saying. segue. Okay. Complimenting you. तारीफ कर रहा है यार, ले लो Thank you, आराम thank से. you. Such a flawless segue. I हिंदी know में बोलो दिशांत सर, हाँ. इंग्लिश I थोड़ा. don't know what the Hindi word for segue is. तो या तो जैसे कि हम काफी अमेरिकन फेस्टिवल्स भी यहाँ पे आने के बाद सेलिब्रेट करने लगे एंड कौस्तुभ स्टार्टेड अबाउट दैट राइट तो I think I think we also made a lot of friends in our own batch, right? yeah. So it started with that, and we had one of our very close, eventually our very close friend Jonathan, who Yes. started taking us along with him to his festivals. I Correct. think Easter, I think. Easter, yeah, Easter Yes. is what I you know, remember. Yeah. it was such a good experience where we were, in the church community, like how they got together, they had their own traditions, Correct, and then correct. they had like all of those children running around doing the Easter Yeah. egg hunt. Yes. And all in all, I think John kind of like, he, I would say it was a good way of knowing the American culture in the sense that like the Christian festivals he used to talk about like if there was any festival, he also talked about Lent, right? They also have this 40 days of fasting, which then, on the 40th day they break their fast. So he used to give us like all of this information, take us along, and which broadened our, understanding of the American culture, which I think I am very grateful for him. Like he saw us and he was like, he was from Jordan. He used to call us my Habibis, which was My very Habibis. Yeah, he was, I think, born outside US. I'm not sure, Jordan. but Yeah, Jordan. he was born in On Jordan. Jordan, yeah. तो उसके काफी cultures were mix. Like he had learned about different cultures across. I think like Indian culture के बारे में उसको पता था. He was also very well aware about the Mediterranean, Middle East culture. तो काफी सही था. And he was always open to learn about our festivals also. That was also amazing. तो वो कभी गरबा में आया था क्या? I'm not sure. I don't think so. वो कभी गरबा पे आया गरबा था. में नहीं आया था. बट होली में शायद आया था. आई रिमेम्बर वो होली होली फेस्टिवल में था वो. था ना? होली या में या था. तो सही था वो, मस्त था. या उसको आई थिंक हम लोग अपने सेलिब्रेशंस में भी एक दो बार बुलाए खाने के हाँ, लिए. वो अपने बर्थडे हाँ, सेलिब्रेशन वगैरह बर्थडे में भी आता था. सेलिब्रेशंस में आता था. हाँ. करेक्ट. Another was, I think, Thanksgiving. Anyone wants to talk about that? मतलब Thanksgiving is a thing. I think it's only in the US and Canada, right? Like हाँ. it's not celebrated across the world. So the first time I was here, it was a very big shock for me. कि अच्छा. Thanksgiving के time पे like restaurants were all closed, Mhm. right? Thursday afternoon, and people started having lunch or dinner at 2 o'clock or 3 o'clock. So the first year I was here 2015 में, तो लोग बोलते थे कि my roommate did his bachelor's from US, so he knew about everything. So वो बोलता था कि अरे Thanksgiving के टाइम में काफी सारे डील्स होते हैं, ब्लैक फ्राइडे के दिन शॉपिंग करना है तो तुम वो टाइम पे करो. तो मैंने बोला कितने डील्स होते हैं? बोलता अरे यार 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो अगर लकी है तो 90% ऑफ भी मिलेंगे. मैं बोला यार इतना ऑफ है तो मैं तो 2015 अगस्त में आया, तो मैं सोचा कि मैं रुकता हूँ थैंक्सगिविंग तक थोड़े विंटर क्लोथ्स खरीदने के लिए. तो नवंबर एंड में थैंक्सगिविंग था, तो मी एंड माय फ्रेंड्स वी वेंट टू शिकागो, और वहां पे मेरी एक अंडरग्रेड दोस्त थी, तो उसके घर पे रुके थे क्योंकि मतलब होटल पे बचाना था हमको. सो वी स्टेड एट हर प्लेस. सो उसके भाई आया था. सो उसके भाई नया गाड़ी लिया था वो टाइम पे. सो ही वाज लाइक अरे चलो मैं तुम लोगों को शॉपिंग लेके चलता हूँ. तो मैं शॉपिंग गया था. आई वाज सरप्राइज्ड कि ये रात के 9 बजे, जहाँ पे मतलब इन जनरल मेरे को 9 बजे मतलब काली काली का मतलब है
कि unless like you go to a big city, everything is closed off at 9 o'clock. But we went to Aurora Mall in Chicago, and it was so cold, and we were not prepared for that, and the lines were so huge. मतलब कोच और माइकल कोर्स के स्टोर में घुसने के लिए तुमको आधा घंटा रुकना है। मैं बोला ये कैसी फेस्टिवल है यार कि लोग बाहर है शॉपिंग करने के लिए, ठंडी में, हाँ ठंडी में ये कैसी सेलिब्रेशन हो गई है। तो बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ शॉपिंग का है। लोग जो अभी इसलिए वो लोग 2-3 बजे डिनर करते हैं, और डिनर में मतलब टर्की होता है और मैश पोटैटोज, ग्रेवी, सो मेनी थिंग्स। तो डिनर करते हैं और घर से निकलता है शॉपिंग करना है, और बोलता है कि ये स्टोर्स ये एक दिन के लिए पूरा रात भर खुला रहेंगे और नेक्स्ट डे भी पूरा खुला रहेगा, and you have a lot of sales, and these are like generally outlet stores and other things जहाँ पे मतलब तुमको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। जनरली they are like 1 year old material or old models and stuff, but they used to get like good prices. So that was a cultural shock for me, but then it became a tradition कि थैंक्सगिविंग के दिन शॉपिंग तो करना ही है, बाहर जाना है, मॉल में जाना है। और मेरे को अभी भी याद है हम लोग गए थे 2018-2019 के थैंक्सगिविंग के टाइम पे कि मिहित तरह कुछ तो राजमा बनाया था स्पाइसी राजमा। तो ओ माय गॉड, तो Ranga didn't find it spicy. Ranga and Tarun, both of them didn't find it spicy. मतलब मेरे लिए तो You should have seen the way Sarkar ate that rajma. Oh my God. यार उस दिन ना दिशांशा इतना शॉपिंग किया कि मैं थक गया। दिशांशा आ ही नहीं रहे थे। दिशांशा मतलब अलग ही, मतलब एक टाइम पे तो हम लोग सब गाड़ी में बैठे थे और दिशान को फोन कर रहे थे कि अरे किधर हो दिशान। अरे बोलता अरे मैं अभी आने वाला था ना, तो फैमिली के लिए सबके लिए फिर कुछ ना कुछ खरीद के जाते हैं। That was the first time I came whole here, so I wanted to bring some gifts back. I think that was the night when that was the night when I think we celebrated Thanksgiving literally by shopping for almost close to 24 hours. Eating and celebrating. अरे मेरे को अभी भी याद है एग्जैक्टली क्या किए थे हम लोग। राजमा खाए थे, बेस्ट बाय गए थे, लाइन में खड़े थे, अभिजीत ने टीवी लिया, हाँ मैंने आईपैड लिया, और किसी और ने मतलब लैपटॉप लिया था, शायद धवल ने लैपटॉप लिया था। तो हम लोग घर गए, सामान छोड़े, वापस गए शिकागो राजमा खाने के बाद। फिर राजमा खाने के बाद 2 लोग लगे अभिजीत को जैकेट में घुसाने के। अभिजीत को बोला अरे पेट अंदर डाल, बोलता है अंदर कर, दोनों मैं और मीत, एक साइड से मैं पकड़ रहा है, दूसरे साइड से मीत पकड़ रहा है। And it was the size that he used to wear, but राजमा खाने की वजह से पता नहीं क्या हो गया, हो रहा था इतना मतलब ये। और अभी भी मेरे को याद है हम लोग ने फोटो लिया था पूरा शॉपिंग करने के बाद। हम लोग वापस आए, शिकागो का सामान छोड़े और मेसीज गए सुबह क्योंकि अभिजीत को कुछ परफ्यूम देखने थे उधर। मेसीज में अच्छा डील मिलता है always चलो चलते हैं मेसीज, चलना है। If anyone from Macy's business is watching this, Abhijit is the best brand ambassador for platinum member for a reason. We'll be happy if you want to sponsor our podcast. अरे मेरे को अभी भी याद है किसी ने तो फोटो लिया था, जितना शॉपिंग किया हम लोग ने, सब टीवी वीवी सब लगा के ऐसा बड़ा। अगर किसी के पास वो फोटो है तो थंबनेल में डाल दो। Definitely. Radha, you're on mute. राधा के ड्रॉप कर दिया। राधा को कौन सा फेस्टिवल सबसे पसंद? I think एक मुझे याद है, was it Radha, Harshal and Varad when they went to shopping like Lafayette में? One time when I think पहले couple of years स्वप्निल और मैं we used to be in Ohio State University में थोड़े friends थे तो उनको visit करते थे, but I remember we used to talk to Harshal, Radha and Varad, and they might have a story of their own local shopping. Radha? The first Thanksgiving was like तब मैं पढ़े में ही था, like कहीं नहीं गया था, and one of my classmates, American classmates, she was hosting Thanksgiving. So
I went there. It was my first Thanksgiving. I didn't know what to expect. And like Varun said, like, India में जब festivals होते हैं, like, हंगामा ये सब होता है, मेरे को भी लगा कि like ऐसा होता है, like, streets पूरा crowded रहेगा, celebration रहेगा, celebrity mood में, मतलब festive mood में रहेगा ये सब. But I stepped out and I didn't find a single person in the entire and her place was a little bit far, so Uber वो सब भी नहीं मिल रहा था. So I took a bus, and then I went there, but then it was still like far. The bus stop was still far away from her place, so I had to walk for like some 15 minutes or 20 minutes in that hole. But then finally I reached there, and then like I got to experience like true American Thanksgiving. क्योंकि like वहाँ पे मैं अकेला इंडियन था, बाकी सब अमेरिकन ही थे. So and खाने में mostly like meaty था, turkey, like served, and the only veg option I had was mashed potatoes. So basically, I just had mashed potatoes. And then वापस आने के बाद next day I think हर्षल मैं और वरद तीनों shopping गए थे typical mall. तो वहाँ पे we look for shoes, rack cream shoes, and then Macy's में थोड़ा घूमा था, shopping किया था ये सब. फिर वापस आए. And then I think like वापस आते वक्त I remember this incident. Bus stop में बैठे थे, लेकिन टिपकन मॉल से बस में वापस आए थे, and then we had to change a bus to get back to place. Yeah, the entire ride was like good. That was the only Thanksgiving I celebrated with Americans, and उसके बाद I don't think it was celebrated with. उसके बाद तो हमारे साथ इंडियन वर्जन ऑफ थैंक्सगिविंग जो शॉपिंग पूरा शॉपिंग से भरा हुआ Mix है of Thanksgiving and Christmas, I would say. yeah. I think this is also a big reason we are so close, because हम सबको शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है. मेरे को तो ये याद है कि पहले मैं कभी ना ऐसे ब्रांडेड वगैरह बहुत अवॉइड करता था, मतलब इतना महंगा क्यों लेने का वगैरह. फिर अभिजीत, धवल और दिशान आए, बोला अरे ये क्या है, इतना सस्ते में कैसे मिलेगा ये. तो फिर बोला अच्छा टॉमी है, ये है, अलग अलग ब्रांड है, तो सस्ते में मिल रहे हैं, वी शुड गेट इट, राइट. दिशान नाम बदनाम कर रहे हैं अपना. एम्बेसडर हो गया. दिशान तो अभी मतलब क्या मीत बोल पर रहे एक हैं? एक्सप्रेस का ब्रांड एम्बेसडर. वो तो बाद में बना, क्योंकि तुम ये लोग ने तो बिगाड़ दिया ऑलरेडी. पेस्ट था मीत पारे का, ओनली एक्सप्रेस. ओनली एक्सप्रेस. और दिशान शाह तो एक्सप्रेस कैल्विन क्लाइन का है ब्रांड एम्बेसडर. Calvin and Tommy. Tommy. Well, I'm wearing a Tommy right now. क्या बात. वाह वाह. Anyway. और हमारा ऐसा talking about ब्रांड में भी festivals ऐसे ना, प्रोग्रेशन होता था. स्टार्टिंग में जाते थे तो H&M से ही करते थे, अरे वही H&M, ओल्ड नेवी, वही हमारे लिए अच्छा है. अभी H&M का H&M बोलता है, अरे वो लादी पोंछने के लिए H&M के कपड़े मेरे को अभी भी याद है, मैं सिर्फ ओल्ड नेवी में खरीदता था क्योंकि इतने सस्ते में आते थे. एग्जैक्टली. हाँ. my first अभी मैं ओल्ड नेवी Thanksgiving, that's जाता where भी I नहीं bought हूँ. stuff from. Yeah. क्या बोल रहे दिशान. My first Thanksgiving, I also bought a bunch of stuff from Old Navy because I thought the other brands are too expensive. Yeah. ऐसा और पर festival एक्चुअली में ना, थैंक्सगिविंग का और शॉपिंग का बहुत एक अलग हमारा भी एक्सपीरियंस है. आई रिमेम्बर 2016 वाज द फर्स्ट ईयर जब वरद, हर्षल, मैं, स्वप्निल, वी ऑल वर गोइंग टू गो बैक होम आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ, एंड सबकी ऐसे लिस्ट बनी थी. तो सब लोगों ने लिख के रखा था किसको क्या लेना है, लाइक वेल प्लान्ड पूरी लिस्ट थी सबकी. एंड बिटवीन अस, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे स्वप्निल और मैं वो साल भी OSU गए थे एकदम बड़ी गाड़ी लेके, थिंकिंग कि यार मतलब जरूरत नहीं थी. वी गॉट No, we free booked a small upgrade. car. Yeah, we got a free Yeah. upgrade. फ्री अपग्रेड मिल गई एंड वी वर लाइक यार इतने बड़े कार की जरूरत नहीं है. टर्न्स आउट वो पूरी कार भी भर के लेके आ गया. बट आई रिमेम्बर द कोऑर्डिनेशन गेम वाज सो स्ट्रांग कि लिटरली जहां जा रहे थे, जहां हर्षल वरद weren't able to go, वी वर कॉलिंग कि इधर है कुछ चाहिए. तो लिटरली ऐसे कोऑर्डिनेशन चल रहा था, पूरा शॉपिंग चल रहा था. एंड देन एट द एंड like there was like a brief period where we were just accumulating things and then packing. तुम लोग एटलीस्ट H&M स्टोर जाते थे पहले शॉपिंग के लिए. मैं तो हाउसिंग फेयर जाता था हाउसिंग फेयर पूरे शॉपिंग के लिए. साल भर का शॉपिंग करके आता था वहां से. I remember buying a bag of Coach for mom,
And obviously, I didn't tell her the actual price, because if I did, she would be like, even after discount, she would be like, "Oh, this is too expensive. I'm never going to use it." And but she really liked it. So that, like, those are the things which they are never going to buy on themselves. But then when we give them सही बात those things, it feels And good. I think once you are in US, like your friends in India will, once they know you're coming back in December, they'll send you their own list. iPhone. Oh And yeah, then laptops and that's stuff, something you, electronics. yeah. iPhone iPhone. Yeah. Friends and So family. basically festivals चालू हुए celebration से बहुत सारे around Thanksgiving, Christmas would be a lot of shopping. तो काफी मजे किए, काफी मस्त Yeah, memories the other बने थे, festival तो that I can think of is like July 4th. During Independence Day, we used to go Fireworks. see fireworks, right? I remember we used to go to Chicago Chicago, once in yes. a while Chicago. for Yes. fireworks. अब Yes. One याद of मत दिलाओ मेरे को. Oh, of course. Of यस course. मेरे पेरेंट्स को फादर को जस्ट ड्रॉप किया था एयरपोर्ट पे एंड देन हम लोग Oh, मम्मी के साथ Hmm. सब शिकागो गए थे. मेरा कार था और तरुण का, 2 कार में हम गए हाँ. थे. यस और एक हमने ना कोलोराडो में, I think we were हाँ in which city we 2018 were in? बोल्डर Yeah, गए थे, I think. ऑस्टिन Boulder, हाँ yes. बोल्डर था We were in बोल्डर में we did देखा not था. see on that July day. 4th. मैं और ऑस्टिन हमने जुलाई बोला. बोल्डर शिकागो में देखा. St. आयरिश Patrick's फेस्टिवल Day भी हम भी सेलिब्रेट करने जाते St. थे Patrick's शिकागो Day. में. St. Patrick's सेंट Day. पैट्रिक्स भी करते थे, Green करेक्ट. Green River. हाँ. वो भी हेलोवीन के अच्छा लिए था. भी हम लोग ने 345 वालों ने एक बार बहुत ज्यादा ड्रेसअप किया था, बहुत खर्चा करके एकदम फर्स्ट ईयर पायरेट वायरेट बने थे. फर्स्ट ईयर ही तू पायरेट बना मैं था, पायरेट बना था, अभिजीत Oh. मैं क्या वो रीपर ग्रीम बना था. रीपर बना था. मुझे अब तक पता नहीं मैं क्या हाँ. बना था. मैं कुछ भी पहन के सस्ता वाला लेके आया था और जो तू और वरद एक्चुअली मारियो कैरेक्टर्स बने थे. उनको अभी पता भी नहीं होगा. सस्ते में विग दिख गया था प्लास्टिक का, नायलॉन I का think विग वो लेके आए थे. मैं पूरा हम्म. पायरेट कॉस्ट्यूम लेके आया था, ये पूरा ग्रीम रीपर बन के आया था विद ऑल दोज एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग. yeah. और वो लेके फिर हम पहले तो फोटो सेशन किए थे हमारे इधर घर पे, आई थिंक अपने ही घर पे किए थे. घर पे, हाँ, घर पे यस. गए थे और फिर नियॉन कैक्टस नियॉन गए थे. कैक्टस. वो मुझे सब अभी भी याद है देख के, वो हाँ. ग्रिम रीपर की जो मेरी स्टिक थी, वो एट द एंड ऑफ द डे वाज अ हॉपिंग स्टिक. लिटरली 2 जन वो नियॉन कैक्टस में पकड़ के लोग उसके ऊपर कूदी उस मार रहे थे. और नीचे That से वो was जो, what we were doing at नियॉन. हाँ. और हमको लग रहा था कि हम लोग बहुत ज्यादा ड्रेसअप होके गए, इतना तो कोई नहीं रहेगा. और जाने के बाद हम सबसे लीस्ट ड्रेस थे Yeah. Yes. नियॉन कैक्टस में. हाँ. लोग इतना काफी या खर्चा करते हैं Yeah, टू yeah. लुक डिफरेंट. एंड एवरी ईयर दे कॉम्पिटिशंस होते हैं, राइट? हाँ कॉम्पिटिशंस थे, Competitions हर हाँ. साल एक्चुअली नया मेरे को एक बार कॉस्ट्यूम. थर्ड मिला था क्या नियॉन बात है. कैक्टस में क्या बात 2015 कर रहा है, में. क्या बना था तू? अरे मैं ग्रिम रीपर का फेस पेंट बना के पूरा हाँ. ऐसा स्केलेटन फेस पेंट बना के गया I था. think I've seen that photo. हाँ, तो मैं मैंने नहीं एक्चुअली देखा है. हाँ उस टाइम पे पर्ड्यू में ये कॉर्न क्या इंडियाना फेयर फार्म और हाँ एकर्स हाँ हाँ, यस. हाँ तो हाँ. मेज On रहता maze. था. तो हम लोग मेज में गए थे. हम लोग स्कूल के बच्चों को डरा रहे थे. अच्छा. तो हाँ ये स्टोरी मेरे को आई थिंक आई रिमेम्बर. तो यस उसके बाद मेरे दोस्त बोले कि अरे यार कैक्टस चलता है. तो इतना सही रेडी हुआ तो कैक्टस में कुछ तो कंपटीशन चल रहा है, तेरा नाम डालते हैं. तो गया था, कुछ तो थर्ड प्राइज बोले, बट कुछ मिला नहीं मेरे को उस दिन. नाम कमा के आया बेटा तू उस दिन. नाम का बात है. बट सीवी में डाल सकता है ना. हैलोवीन पर्ड्यू में काफी सही होती है. सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मानेगा नहीं. हाँ वो भी. वही तो. तरुण मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता. अरे फ्री का Exactly. बियर दे देता है यार. मतलब कुछ तो देते हैं. अनाउंस हम्म. करके क्या किया. और नाम भी नहीं बोले. बोले थर्ड प्राइज ग्रिम रीपर. इतने सारे ग्रिम रीपर थे उधर. तो तूने अज्यूम मतलब किया तूने कि मिला. अभी सही व्हाट्स बात. किसी द और प्रूफ का कि नहीं तू लेके ही आया ना. जीता था. उसने मेरे को दिखाया. बोला थर्ड प्लेस ग्रिम रीपर. ऐसा पॉइंट किया. मैंने बोला वो अच्छा बियर ठीक ज्यादा है. हो गई रहेगी, बाजू वाले को दिखा रहा था, तू बोला कि भाई मेरे को बताया. तब मैं नहीं पीता था तो ठीक था. नहीं, बताने वाले ने उसको सब बियर ज्यादा हुई होगी. बट हैलोवीन के टाइम पर्ड्यू अच्छी होती थी कि बार हॉपिंग कर सकते थे. तो हैरिस ब्रदर्स, उसके बाद वेरल्स, उसके बाद कैक्टस हाँ हाँ हाँ. और सब गंगा मतलब कभी ऐसा सेलिब्रेट मतलब ये क्या बोलते हैं कॉस्ट्यूम Dress वगैरह up. पहना है कभी? गेटअप नहीं, की? मैंने नहीं पहना. कभी नहीं पर किया. पर मेरे को क्रिसमस फेस्टिवल मतलब ये सेलिब्रेशंस का मेरे को सबसे अच्छा जो लगता था, मतलब हाँ हमने जो किया था सीक्रेट सेंटा, हाँ हाँ. वो हाँ. मेरे को हर बार याद आता. मतलब दैट वाज लाइक हमको मिहित ने सरप्राइज दिया
Santa बन के That was आके such a big surprise. Yeah, Meet was our king of surprises. मतलब King था of मेरा surprise. एक सवाल उसके लिए बाद में, but yeah, रंगा continue. हाँ, तो there we used to like, I mean, one time what we did was we bought gifts for everyone, पर नाम नहीं लिखता था. Nobody knew who bought the gift for them, and I think एक के बाद एक you used to go, no, and then at the end you sort of know who gave the gift to whom. But at the start it's very fun. For first 4-5 gifts you never know who gave the gift to you, and you try to guess. Yeah, yes. So And उसमें वो मेरे स्वप्निल का को तो gift स्वप्निल का गिफ्ट बेस्ट था, बेस्ट गिफ्ट मिला धवल ने स्वप्निल दिया को। था, बहुत डबल ने मस्त दिया था था। स्वप्निल. ओके वो चौक स्वप्निल कितना मतलब डिप्लोमेटिक बजट कितना था रंगा? हाँ। बजट कितना था याद है? मतलब बजट बजट 50 50 था। कुछ तो 50 था। था। हाँ 50। इसको लगा अबे $50 में आईफोन मिल गया। अभी मैं था बोला, मुझे क्या पता, बॉक्स देखा अरे मस्त तो आईफोन बोलना का क्या देखा। हुआ एग्जैक्टली, हुआ पूरा क्या डिटेल में हुआ? बताओ। हाँ तो आई थिंक हमने 50 का रखा था बजट, एंड देन वी वर स्टार्टिंग ओपनिंग गिफ्ट्स, किसने क्या लाया है, एंड देन धीरे 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 एक का खुल रहा था, एंड देन मेरा नाम आया, मैंने देखा उसने पूरा पैक किया था पूरा, मतलब वो बॉक्स में, तो मैं बॉक्स खोला, देखा सामने आईफोन का बॉक्स था, एंड आई एम लाइक मेरे पास तो आईफोन है नहीं, मैं आईफोन कैसे आ सकता है, एंड देन फॉर अ मोमेंट आई एम लाइक हो सकता है यार, यहाँ पे कभी कभी ईबे पे कुछ बेचा होगा $50 में, किसी ने दिया भी होगा, एंड देन आई ओपन, एंड उसमें दिखा था हर्शीज का चॉकलेट था। और फिर और उसने बोला अच्छे से पैक किया, मतलब पैक अंदर बहुत भी अच्छे थोड़े से पैक किया बॉक्सेस था, थे, एंड देन आई एम अंदर लाइक भी थोड़े बॉक्सेस मैं थे। बोला बजट तो 50 का था, हर्शीज का तो $2 में आता है, मतलब बाकी का गिफ्ट किधर है फिर? हाँ, But then he I gave think me like a different jacket, का टॉमी का जैकेट दिया था उसने 50 का। डिले हो गया तेरा चल शिपिंग at इसलिए। the end yeah, of the day box मिला था या वो भी ले लिया था बाद में फिर? नहीं वो आई थिंक सरकार ने वो स्टिकर्स लिए थे, उसमें तो स्टिकर्स थे या कुछ तो। आई थिंक वो मेरा बॉक्स, मतलब हाँ। मेरा आईफोन का बॉक्स हाँ। रहेगा, तो धवल ने वो लिया था मेरे से। पर वो अच्छा इवेंट हुआ था वो, आई थिंक Yeah, and I फर्स्ट think टाइम we भी that किया was था। very continued. memorable. The best part is we've continued either doing हाँ। Secret Santa या White Elephant in some sort of the other. जब भी मिलता है हाँ। किया. मिलता है। We did it during our Austin trip, Austin Thanksgiving पे. इवन तो अभी का ऑस्टिन ट्रिप रिसेंट पे टेनेसी किया, ट्रिप अभी पे भी किया recent है। Tennessee में भी ट्रिप में किया, yeah. We did White Elephant तभी थोड़ा अलग, but it was fun too. ऑस्टिन का सीक्रेट सेंटा वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, या Yeah. कि हम लोग पूरा मतलब सेलिब्रेट करके थक गए थे। सेलिब्रेशंस में नहीं जाएंगे क्या सेलिब्रेट किए, बट सोचे कि हम लोगों को जाना था सैन एंटोनियो, तो हम बोले नहीं यार शॉपिंग करने चलते हैं, थैंक्सगिविंग का टाइम है क्योंकि तो शॉपिंग तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। कुछ एक तो लेना है। और क्या रास्ते लेना में था हम लोग ना ने वैसे? डिसाइड किया तूने कि तो जीन्स लिया था। नहीं नहीं उसने धवल अब दिशान दिशान ने ने दिशान है बहुत लिए, बहुत जीन्स बहुत लिए जीन्स लिए बहुत जींस लिए मेरे लिए भी ले लिया। बट हाँ वो वाला स्पॉन्टेनियस था तो अच्छा था वो भी। वहां पे हमने मॉल में डिसाइड किया कि दिस इज द बजट, एंड कौस्तभ ने आई थिंक सबको नाम भेज Came up दिए with some app, right? Yeah. थ्रू सम we used to use apps. और तो अभी भी याद है लाकोस्ट गए थे कि हम लोग बैग पूछ रहे थे, वो बंदी अरे बोल रहे बैग नहीं दे रही थी वो बंदी। हम जाके बोले कि हमको शॉपिंग करना है थोड़ा बहुत, पर आप 5 नहीं 6 लोग थे, 6 बैग दोगे क्या? बोली कि व्हाई डू यू नीड 6 बैग्स? बैग्स। फिर उसने उसके मैनेजर को पूछा, फिर somehow Ultimately, मैनेजर ने मना okay. किया हाँ फिर क्योंकि उसने ले बोला रहे Shopping थे bag. चीजें 2 या 3 एंड उस हमने मांगे थे 6 या 7 बैग्स। लाइक कि मैं 3 दे सकती हूँ एट बेस्ट। फिर हमने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो शी आस्क्ड हर मैनेजर, वो नहीं मानी पर उसने फाइनली दे दिया। मतलब सेम बैग जिसके लिए हमने डिसाइड किया था, सो दैट नो वन नोस कि किसने क्या बाई किया है। एंड आई थिंक सेम फंडा हमने रंगा जब था वो वाले सीक्रेट सेंटा में भी हमने गिफ्ट पेपर सेम कलर के यूज किए सेम थे, कलर के थे। एंड देन Oh, एवरीवन यूज्ड टू कम एंड देन एट रैंडम टाइम पुट द गिफ्ट, ताकि put the पता ना gift चले at the किसने कौन tree. सा गिफ्ट रखा है। ट्री और ट्री भी लाए थे यार, दैट वाज द बेस्ट। Tree लाए थे उसने। ट्री लाए थे। Yeah, ट्री वैसे हमने बहुत ऑस्टिन ट्रिप से याद आया, आई न्यू दिस माइट कम अप, तो मीत दिस वाज द गिफ्ट दैट यू हैड गिवन दैट। एंड द ग्रेट wow. जीन्स। हाँ। क्या आई बात है। वो Nice. स्पेसिफिकली फॉर दैट कि अगर टॉपिक निकले तो थोड़ा मीत का स्वैग। बहुत प्लान करता है ये सब। एक क्या पॉडकास्ट के लिए वेरी गुड। दूरदृष्टि। पता चला बाद में ऑडियो रिकॉर्डिंग महाभारत देख के जो एक्सपीरियंस मिला है। अभिजीत ये जो टैलेंट है ना, ये टैलेंट है वो बहुत आगे लेके जाएगा। बहुत आगे लेके, I know, इतना I आगे know, लेके I गया। हम्म, सही है सही। हम काफी मतलब टॉकिंग अबाउट
next thing that I wanted to talk about was हमारे जो celebrations थे छोटे फॉर्म में होते थे बड़े फॉर्म में like all small victories big victories जो ही बोलते हैं तो हमने काफ़ी किए पॉटलक जैसे हमने स्टार्ट किया था इनिशियली डिस्कस करने का हमारे पॉटलक आई थिंक मोर और लेस कुछ कुछ अपार्ट फ्रॉम फेस्टिवल्स थीम बेस्ड भी होते थे आई थिंक कि जैसे कि न्यू लोग आए हैं न्यू कमर्स तो उनको आइस ब्रेक करने के लिए एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए जैसे दिशान बोला था कि ही मेट मैनी पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम तो पॉटलक में हुआ ऐसे कोई और थीम बेस्ड पॉटलक्स तुमको याद आ रहा है जो हम अपार्ट फ्रॉम फेस्टिवल्स करते थे वंस इन अ वाइल ऐसे कि वर दे फोकस्ड मोस्टली अराउंड द फेस्टिवल ओनली लाइक एक दिवाली Yes, का करते थे I think I can think of the potlucks we used to have at my professor, my PI's place. हाँ She used to invite us every year at her house, and we had like people from different countries in our lab, and we used to all bring in something from our country, our culture, and that was also a really nice way to get to know people, hang out, and get to eat different kinds of cuisines. I think COVID के वक्त like सरकार रंगा and we used to do like थोड़ा ऐसे like theme based potlucks नहीं बोलेंगे just we used to love cooking and we used to love cooking together तो ऐसे एक दिन breakfast या कुछ बना लिए but theme specific करते थे तो that's something that I remember Thai food बनाया था वैसे इवन लाइक इंडिया के भी काफी ऐसे रीजनल स्पेसिफिक फूड्स बने थे तो that's pretty fun या अभी थीम बेस्ड में वो याद आ रहा है हम अपने कोहॉर्ट के साथ भी जाते थे याद है वो वी यूज्ड टू डू सम समर्स में वी यूज्ड टू डू पॉटलक to go to Jessica's house, remember we did that. ओह यस यस हम लोग So सब कुछ हम क्या बना के गए थे याद नहीं आ रहा है आई डोंट रिमेम्बर बट हाँ हम गए थे उसके घर पे आई रिमेम्बर सब अलग अलग सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आए थे आई हाँ, रिमेम्बर यस यस फर्स्ट I ईयर में ही था still राइट फर्स्ट ईयर first year में ही था and then I think I remember us that was the day we got introduced to s'mores. कैंपफायर बना ग्रेहम बना क्रैकर्स के बीच में मार्शमेलो लगा के या चॉकलेट डाल के but talking about small celebrations I think I remember अपने celebrations around अपने small victories even academically like किसी का अगर qualifier हो गया है prelims हो गया है I व्हाट इज think क्वालिफायर So, फॉर आवर ऑडियंस PhD process usually has two check steps. First one is apart from your regular coursework, you're also focusing on research. The pehla pada jo bolenge, that is your qualifiers. अच्छा So it's a presentation that you make to a committee, and the committee decides whether you will continue in your PhD program. ओके Yeah, they give you a second chance, or if they deem you not qualified enough for continuing PhD, so you have an option to master out. And then बराबर prelims, ये typically होता है around 6 to 8, 9 months in your research. And then उसके बाद next step is roughly almost 2 years into your research, उसको prelims बोलते हैं, where they want to know more about कि how have you planned your research up until now and आगे कैसे plan करोगे. They बराबर just want to see how you are, how your aptitude is growing towards research. So it used to be a big one because it tells a person whether they get to continue in the PhD program. So no matter whatever the outcome would be, and in this case everyone is a PhD, तो सबके outcomes अच्छे ही थे. But we would celebrate and like छोटे से कुछ तो celebrations घर पे कभी कभी मीत आने के बाद तो सब massive और grand celebrations ही होने लगे. Yeah, but it used to be fun. Like we used to start small, but then we used to always Yeah. make sure I the think person felt special. I was the first person जिसका qualifier हुआ था and मेरा थोड़ा Yes. जल्दी हुआ था 1 month earlier because of some other dates and stuff. And then I had no idea that we have like because it was the first one, we didn't know that we were going to celebrate either, right? Like it's just an exam, the first time you're giving a presentation to a committee in US and within a year of coming here.
And then when I passed, of course, my friends knew that I was giving the exam, and I told them it's done. Because they tell you the same day after you're done presentation, like within 10 minutes, they let you know, okay, you passed or not. Mhm. So I messaged my group that, hey, it's done. And then they got a small cake, and then that weekend they took me to like Chicago, like me, Abhijit, Harshal. We went to Chicago अरे for a वाह trip. So it was like a nice small. It feels good, like you have actually like your small. It's a small victory or small achievement. It's being Mhm. celebrated here also. So that was a very nice thing. Yes. Meet तुझे याद है about any of these like So I remember events? क्योंकि हम and whatever Abhijit just mentioned is specific to chemical engineering. We'll ask Tarun and Dishan and Harshal what their department had this and how they celebrated. So yeah, coming back to our celebration. So I think कौस्तुभौर में since we were from the same batch हम लोग I think सबके क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम वी यूज टू गेट लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम यू गाइस कि क्वालिफायर है प्रीलिम है तो दिस इज माय प्रेजेंटेशन मैं इसको 20 मिनट में प्रेजेंट करना है विद द क्वेश्चन आंसर्स वगैरह तो ये लोग तुम लोग सब लोग काफ़ी ट्रेन कर देते हमको कि भाई ऐसे पूछ सकते हैं एंड वी डिड नॉट नो राइट कौन से प्रोफेसर आएंगे हमको क्वेश्चंस तीन आई थिंक कौन आएंगे तो वो होल जो माहौल था वो काफी एकदम ऐसा थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता था फॉर द पर्सन इट्स लाइक एग्जाम राइट एग्जाम में हम कैसे थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो आई थिंक वो पूरा एक एनवायरनमेंट थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता था एंड देन फाइनली जब वो क्वालिफायर है फिर प्रीलिम है हो जाता था उसके बाद ऐसा लगता था हो गया अभी देखते कभी कभी रिजल्ट्स थोड़े दिन बाद आते थे आई थिंक आई एम नॉट श्योर हाँ लाइक हाँ क्वालिफायर में बाद में उनको प्रोसेस आता बाद अपडेट हुआ बाद था में आता 16 में Yeah. प्रोसेस अपडेट हुआ 16 रंगा था के में ईयर बना से दो अपडेट हुआ था करेक्ट करेक्ट तो वी डिड नॉट नो कि भाई कैसे पास हुए हैं नहीं हुए पर हो गया खत्म और फिर जिस दिन ऐसा आता कि भाई पास हो गए तो फिर सब लोग घर पे मिलते थे वीकेंड होता था तो सब लोग ऐसे घर पे मिलते थे एंड देन हम सेलिब्रेट करते थे केक लेके आते थे तो पूरा ऐसा धमाल होता था राइट बहुत धमाल करते थे घर पे क्रेस्ट्यू में तो इट इट देवर अमेजिंग टाइम्स एंड देन वो जो पूरा प्रिपरेशन फेज उसके बाद जो रिलैक्सेशन फेज आता था एंड देन फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ यू आर इन दैट कि भाई हमें पास हो गया आई एम नाउ क्वालिफाइड टू डू पीएचडी तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा एंड देन रियली एंजॉयड इट आई थिंक दैट होल प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू दैट I एंड think देन having सेलिब्रेटिंग that support system is very important, like building up that support system, because you are coming into this country if you do not have that friends or social network, because it's very demanding. और कभी कभी अगर रिजल्ट्स पहले टाइम पे ठीक नहीं भी होते हैं तो यू नीड पीपल टू सपोर्ट यू एंड कि अरे पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो फिर हो गया आई थिंक कितना हम वी यूज टू मॉक प्रेजेंटेशंस कितना हाँ ही तो मॉक किए प्रेजेंटेशंस बहुत करते थे trying to get, and I think it was something that we also did for our juniors also, like हमारे लिए अभिजीत रंगा स्वप्निल हर्षल सब बैठ के बैठा के सुनाते थे 20-20 मिनट का प्रेजेंटेशन हाँ that was very helpful even for prelims मुझे याद है कि मतलब काफी लोग तुम सब अलग डिपार्टमेंट में हो ना फिर यस भी like I तुम्हारे used to डिपार्टमेंट में practice with कैसे all था of you दिशान तुम्हारे डिपार्टमेंट में कैसे था हमारा prelims तो similar ही था but ओके instead of qualifiers we used to have seminars right Tarun So it's like within the first year and a half, you have to do your first seminar. So that is kind of like your qualifier. But we did it openly to like the entire department. And then the department में लोग you have your peers, तुम्हारे senior थे, तुम्हारे professors थे, और तुम्हारे potential committee members थे. तब तक you don't know your committee fully वो time तक, तो तुम्हारे potential committee members थे. So basically the pressure is on you to be like, okay, मैंने एक साल में already इतना काम किया हूँ और मेरा plan ये है आगे जाने का. There was no pass or fail कि मतलब, but you used to get feedback from your peers. Everyone used to fill out a form. Everyone used to give you feedback, and used to be a professor who used to run that seminar. They used to bring you in and they used to go through the feedback with you, saying कि अरे तूने ये जगह पे काफी जल्दी जल्दी बोल दिया, ये जगह पे ज्यादा तूने डिस्कस नहीं किया. These are the things that you need to improve on your presentation, also in your content. तो वो एक plus अच्छी पूरा बात होती थी हमारे लिए
we used to get feedback not just from our own lab but also from the entire department. अच्छा. And then uske baad 1 year before you are ready to graduate, you have to do your prelims, where you go in front of your committee, you show why you need to be a PhD candidate. So you are a PhD student पहले, which means that तेरा guarantee नहीं है कि PhD मिलेगा. Once you become a candidate, that means that you are in a position where you just have to wrap up and defend your thesis to get the degree. So it's like glorified government employee type. Guarantee है कि PhD मिलेगा, but कब मिलेगा is on you. बराबर. बाद. वो उसका तो दिशान बता पाएगा. या बताओ दिशान. Yeah, I was kind of thinking about when he said that 1 year before you graduate, you do your prelims. I'm like, I do 4 years. Anyway, so in my group, in whatever research group I was, we typically used to do our prelims by the end of third year. And also I had this kind of a funny PhD program where I had to like go back to my employer's site to continue my research after my prelims. So that was kind of a bittersweet time when I completed my prelims and passed it, because I was soon to leave. Yeah. And leave you guys, move away back to India. So maybe we can talk about it in detail in some other episode. Yeah. Kind of But एक और चीज जो याद है, I know we spoke about ये, but birthdays. Before that, Harshal का एक ले लेते हैं. So in Harshal department, Harshal has gone through a lot of different things. So how was your experience, and then celebrations that you remember from your time? या आई मीन हमारे में भी ये होता था प्रीलिम्स वगैरह. तो हमारे में सबसे पहले क्वालिफायर्स होते थे, एंड द क्वालिफायर्स यूज्ड टू बी इन द फॉर्म ऑफ 5 एग्जाम्स दैट यू हैव टू पास. तो पहले 2 साल में हर महीने में एक एग्जाम होगा, और पहले 2 साल में यू हैव टू पास अ मिनिमम ऑफ 5. तो अगर वो पास कर दिया तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन. पर उसका ये होता था कि एग्जाम्स का सिलेबस दे वुडंट डिक्लेयर कि किस पे पूछने वाले हैं क्या. तो जस्ट तुमको आना है, बैठना है, वो पेपर देंगे और तुमको लिखना है. तो स्टार्टिंग में तो काफी एग्जाम्स, काफी अटेम्प्ट्स तो हमारे तो उसी में गए. अगर हम इंडिया से आए थे एंड द फर्स्ट क्लासेस शुरू नहीं हुए, लेकिन अगस्त में हमने हमारी पहली एग्जाम दे दी थी. उसको हम क्यूमुलेटिव एग्जाम बोलते थे, क्यूम्स. तो वो हम लोग ने स्टार्टिंग में तो वो एडजस्टमेंट में ही गए काफी सारे, कि इंडिया में जो सिखाया था और यहाँ पे जैसे सिखाते बहुत अलग है. लेकिन कुछ वहां पे भी होते थे अपने आईआईटी के कुछ लोग होते थे, वो बहुत फोड़ते थे, उनको पहले से ही सब कुछ आता था. तो राधा की तरह राधा सब कुछ आ रहा है पहले से, और हम इधर स्ट्रगल कर रहे हैं. बट इवेंचुअली सो एक बार यू पास दोस 5 एग्जाम्स, देन यू आर in your first 2 years when you are qualified to give the prelims, ओरिजिनल प्रीलिम्स इसको बोलते थे. और उसका फॉर्मेट ऐसा था कि it has got nothing to do with your research. In fact, it needs to not do anything with your research. तो you have to come up with your own research proposal, कि जो रिसर्च तुम्हारे बैकग्राउंड में, अगर मतलब मैं ऑर्गेनिक का हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा मुझे दूसरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना के लेके आना है, कि जो मैं जिस पे ग्रांट लिखूंगा तो मुझे फंडिंग मिलेगी ऐसा. And then I have to come up with my own idea, and not just that, I have to come up with like fund कैसे करूंगा and all of those things, and then I have to defend it in front of the committee members. तो वो एक काफी, that was an interesting experience. I never got the point of it, but if it was there, so we had to pass it. तो those were हर्षल जो बोला ना अभी राधा के बारे में, तो मेरे को वो मीम याद आया कि जहाँ पे हमारे स्ट्रगल्स खत्म होते हैं वहाँ पे शुरू होते हैं. जहाँ पे अपने सपने नहीं क्या ऐसे कुछ सपने खत्म होते हैं, वहाँ पे तुम्हारे स्ट्रगल शुरू होते हैं. मैंने राधा इज लाइक शर्मा जी के लड़का. आई रिमेम्बर ट्रांसपोर्ट उसने सिखाया था. वो जब सिखाता था ना, हम लाइक ही वाज आवर टीए, तो हमको ऐसा सब समझता था कि रिएक्शन इंजीनियरिंग नॉट ट्रांसपोर्ट. हाँ जो भी है. रिएक्शन इंजीनियरिंग, करेक्ट, रिएक्शन इंजीनियरिंग को वो सिखाता था. क्योंकि क्लास में क्या थोड़ा फास्ट जाते हैं और समझ में नहीं आता कभी, एंड इफ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड तो फिर तो पूरा गया लेक्चर गया. तो देन वी यूज्ड टू गो एंड लर्न फ्रॉम राधा.
और राधा पूरा ऐसा एक्सप्लेन करता है और फिर तब समझता है, पर वापस घर पे जाने के बाद ब्लैंक। याद है तो हम राधा के ऑफिस आवर्स जाते थे, पॉपुलेशन बैलेंसेस वापस समझाओ ब्रिटिश में। Radha ka reputation, na, even before I came to Purdue, I got to know about his reputation. ओहो That he is a very smart and brilliant guy. Because when I was working in a particular company in India, I had a colleague who was Radha's batchmate, ओके Namit. ओके ब्रेकिंग बैड। They were together in IIT Madras. सही है, Yeah. सही है। नाम और Radha एकदम was our फैला हुआ savior नाम है। for a lot of classes. Swapnil वो and I will both agree. सही है, सही है। Yeah. पहला तो हुआ होगा ही ना, तीन नाम First semester बहुत तो बड़ा नाम और एकदम फैला हुआ नाम है। पहला हुआ नाम है। Now, yes, now we can talk about as Abhijit was mentioning कि छोटे सेलिब्रेशंस और बड़े, तो उसमें बर्थडेज आते हैं एंड जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन भी बड़े हो जाते हैं। ज्यादा दिवाली दिवालियाँ ज्यादा जितनी ज्यादा दिवालियाँ। दिवालियाँ देखोगे उतनी दिशान ज्यादा बट दिशान शाह ने चालू किया था, आई थिंक। बोला कि भाई, नहीं पता नहीं किसने चालू किया था, पर ऐसे बोलते थे कि अरे इसने 30 दिवाली काफी देख ली। दिवालियाँ देखी। निशान शाह ही तुम थे लोगों वो। ने मेरे लिए निशान शुरू शाह ही किया। था। दिशान शाह निशान के शाह लिए ही थे। चालू किया था, आई थिंक। मे बी मैं लाया था। एक्सपीरियंस जब काउंट होता था किसी का किसी के बारे में, तो इट ऑलवेज यूज्ड टू बी इन प्रोपोर्शनल टू दिवाली के एक साल मतलब एक दिवाली, तो ऐसा बोलते हैं कि जितना दिवाली देखा मतलब उतना तजुर्बा ज्यादा। तो दिशान शाह ने बहुत दिवालियां बहुत देखी, दिवाली तो हम देखी। बोलते थे कि दिशान, और दिशान बाद में ऐसे तूने देखा है क्या? नहीं ना। दिवाली किसने ज्यादा देखी है? नहीं ये तो I said so वाला ऐसा ये कभी था। I नहीं said हुआ। so. निशान शाह बोलता है उम्र में बड़ा हूँ तो बात सुनना पड़ेगा तुम लोगों को। He was our Bhishma Pitama. But yeah, we used to Actually, celebrate. Yeah. But Talking about birthdays, like I have amazing experience because मेरे लिए, because I'm a vegetarian, I don't even eat eggs. So people used to, including my roommate Mihir, and then Abhijit also always Yes. used to come. Yeah. Yash was there. Used to bake a cake for me because at that point in West Lafayette we didn't have a place which would bake an eggless cake. I Yeah. don't think So there's the still only one. option अभी भी नहीं है। नहीं मिलता है अभी, अभी भी वीगन नहीं है, केक्स लेकिन मिल अभी ना जाते हैं। वो वीगन, हाँ। हाँ vegan. oh, अभी vegan ना के वजह से। इंडियन स्टोर में वो दीप का ये फ्रोजन केक्स मिलते हैं, अभी तो पहले नहीं मिलते थे. Okay, okay. So now there are options. So last time when I was at Purdue, my roommates got that cake for me. But तब नहीं था option. So these guys were like, cake तो बनाना पड़ेगा, celebrate तो करना ही पड़ेगा. So they used to bake a cake for me. So that was very nice, and I used to feel really happy. और निशान शाह आपके वजह से बेकिंग एज अ स्किल सीखे। एक्चुअली 3 जन के लिए मजा आता केक था. बनाई जाती थी। दिशान का नहीं। बर्थडे, यश का बर्थडे और मेरा बर्थडे। हम Correct. 3 के बर्थडे में आई थिंक तुम लोग सब लोग काफी एफर्ट्स डालते हाँ. थे बनाने के लिए, एंड देन वी ट्राइड टू कीप इट एज फुल ऑफ Unique. सरप्राइजेस, यूनिक एज वेल एज सरप्राइजेस, कि भाई जैसे अभी दिशान का बर्थडे रहेगा तो वी विल मेक श्योर कि वो घर पे नहीं रहेगा, तब वी विल बेक इट, और वी विल बेक इट इन रंगा's Someone else's प्लेस और समवन Correct. else's प्लेस, Right. एंड देन फिर रात को, एंड आई थिंक एज टाइम प्रोग्रेस्ड, राइट, हम लोग के सेलिब्रेशंस भी बढ़ते गए, ग्रैंडियर होते गए, एंड फिर वी यूज्ड टू गेट ऑल दोस डेकोरेशंस, कैप पहनते थे। आई रिमेम्बर कौस्तभ का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, कौस्तभ बोला मैं घर ही नहीं ओहो। आऊंगा। हाँ, बोला मैं लैब में हूँ, मैं आ लैब नहीं में रहा हूँ। हूँ। yeah. इतना अच्छा That was सरप्राइज one नहीं of देना his चाहिए था ना। times जब थोड़ा ये हो गया था, he had too much of research on his friend, Research. तो it was like कि नहीं आना ही नहीं, और हम इधर 25 convince करने की 26 लोग कोशिश घर कर रहे पे, हैं, 2-3 थोड़े ग्रुप टाइम आ के, जा, सब आए हैं, खाना खाते हैं, 2-3 उसको ग्रुप। हिंट भी नहीं समझ रहा है कि कुछ हो रहा है उसके बर्थडे के दिन, बट अरे दैट वाज सो आया अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद जो वो खुल गया, his reaction was amazing. अरे एटलीस्ट आई रिमेम्बर कि अपने बर्थडेज पे केक बनते थे, हमारा आई थिंक विद इन आवर सर्कल, जब Yeah. 2015 में आए थे, आई थिंक पहला बर्थडे मेरा था, और तभी केक्स तो पता नहीं था, तो आइसक्रीम केक लाया था, और ये लोग आइसक्रीम केक ले लेके लगा रहे थे लिटरली, लाइक मतलब यू शुड हैव सीन कि मतलब अभी क्रीम तो लगाना है, और आइसक्रीम केक में क्रीम जितना था सब लगा के हो गया था, अभी जो बचा था वो केक ही था, आहिस्ता दूध तो लगाते लिटरली आइसक्रीम लगा रहे थे पूरे बॉडी पे।
अरे मेरे को याद है मेरे घर पे तुम लोग आए थे, कुछ हल्दी वल्दी मिक्स करके लगाए यार मेरे बर्थडे पे। लिटरली नीचे पेपर बिछाना पड़ा तुम लोग लगाने से अरे पहले। क्योंकि ये बोल रहा था कुछ तो मेरे को पिंपल हो जाएगा तो मत लगाओ, क्रीम मत लगाओ, तो अरे बोला हल्दी लगाएंगे तो इससे। हल्दी लेके नहीं, आए। तुम लोग क्या मायोनीज में हल्दी केचप वेचप कुछ तो वो मदन कुछ तो लाया, फ्रिज में जो भी था मिला के लगाया, मतलब इतना टाइम लगा कि वो निकालने में, मतलब यार दिमाग ही खराब हो गया उस दिन। वन मदन वन से याद आया, सेलिब्रेशंस में ऐसे थोड़े एक्सटर्नल कैंडिडेट्स आते थे जो सिर्फ लात मारने के लिए बुलाए थे और उनको लाइक एज बर्थडे बार्टर बम्स। में बर्थडे केक मिलता था, बम्स। बट बस खाली लात मारने के लिए बुलाए, ऐसे फ्रेंड्स थे ये। लाइक अरे मेरे को अभी याद है, अभिजीत को एक बार मदन ने लात मारा। अभिजीत हाँ की बम ऐसा, एक बम ऐसा फूल गई। अभिजीत की ऑलरेडी बम बड़ी है, ठीक है। अभिजीत की ऑलरेडी बड़ी बम एक अरे तरफ इतना ऐसी बड़ा नहीं और है भी रे। बढ़ गई। अरे दोनों मिला के फूल मास गया। ट्रांसफर हो गया। ऐसा मतलब यार, मतलब वो मतलब मेरा रूममेट था और इतना मारता था ना, मतलब बर्थडेज पे। बट वन अरे थिंग वो टू मेंशन ओवर हियर इज कि अपन सब अपने बिजी शेड्यूल में वी वुड टेक द टाइम एंड हम यस, ट्राई करते थे कि उसी दिन, मतलब यहाँ पे कैसा है कि सेलिब्रेशंस वीकेंड पे पुश कर देते थे, बट हमको वो इंडियन सेलिब्रेशन जिस दिन होता है उसी दिन सेलिब्रेट करने का वी वांटेड टू डू दैट। तो सब लोग शाम को अपना रिसर्च है, कोर्स वर्क है, सब फिनिश करके हम शाम को ऐसे मिलते थे it was एंड usually followed by a nice dinner. नाइस डिनर और सब। हाँ, डिनर। और एक्चुअली राधा, अपन डू यू एक रिमेम्बर राधा के कोई घर पे हम बर्थडे? गए थे, आई रिमेम्बर। हाँ, या और आई वांट टू पॉइंट समथिंग आउट कि मेरे व्हाट्सएप में अभी भी आई थिंक 50 ग्रुप है जो मिहिर ने क्रिएट किया। तो कुछ भी हर साल रहेगा का तो हर I will just बर्थडे का create- ग्रुप है। ग्रुप है, क्योंकि क्या होता है कि बर्थडे के बाद जिसका बर्थडे होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो अभी हाँ। वापस उसको किक तो नहीं कर सकते, किक आउट तो नहीं कर सकते ग्रुप में से, तो नया ग्रुप बनाना ही पड़ता है। ईद का बहुत फास्ट है ग्रुप बनाने में। हम सोचते हैं कि अरे ऐसा कुछ बनाएंगे, वो अगले सेकंड ग्रुप बन गया। इसलिए तो क्रेस्ट्यू के कंफ्यूजन हो जाते हैं, 3 ग्रुप है क्रेस्ट्यू के नाम पे। रंगा, तेरे फर्स्ट बर्थडे पे पेरेंट्स थे बाय एनी चांस? नहीं कोई मेरे तो फर्स्ट बर्थडे पे मेरे बर्थडे पे maybe it पेरेंट्स was थे, आई थिंक सेकंड नहीं तेरे Okay. पर बर्थडे मेरे पे को तेरे मेरे बर्थडे पे birthday पे मेरे मेरे- पेरेंट्स थे, तो अभिजीत के। रिमेम्बर अभिजीत के बर्थडे पे। हाँ, यस यस। उस टाइम पे किया था हमने। तभी मेरे तो को तो पूरन पोली मतलब और ये भी बनी थे वो यार। हम्म। इंडिया में तो मेरा तो अकेला बेटा हूँ तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। तो इधर जब आया मतलब इट यूज टू फील कि यार पेरेंट्स नहीं है, पर तुम लोग सब थे इतना। मेरे को सबसे याद है कि तुम लोग मेरे लिए गुलाब जामुन चीज केक बनाया था। मतलब चीज केक वाज माय फेवरेट एंड फिर इसके ऊपर गुलाब जामुन, मतलब आई थिंक सरकार एंड अभिजीत ने बनाया था। अभी हाँ दैट फेल्ट लाइक रियली नाइस। मतलब अभी भी वो फोटो देखता हूँ तो बहुत मेमोरीज आते हैं। तो इट्स जस्ट फील कि मतलब स्पेशली बर्थडेज पे, फेस्टिवल्स तो है ही, यू फील द मिस बिटवीन द फैमिली, बट बर्थडेज पे यू विल फील इवन मोर। तो दैट कनेक्ट रियली हेल्प लाइक सेलिब्रेटिंग बर्थडेज। अब हर बार मेरे को याद है कि एक दिन पहले करते थे बिकॉज इंडिया में 12 बज गया तो तेरा हाँ बर्थडे तो चालू हो गया, तो used to celebrate in the एक्सटेंडेड evening. Actually, सेलिब्रेशंस। even for me, so like my birthday is 21st, so like because I'm generally in India at that time, you guys Yeah. celebrated even Oh. before. Like यस हाँ यस Yes. we यस। also had like a correct. group Even birthdays because रंगा का भी वैसे my हुआ birthday काफी like साल। similar time पे आता था, so कुछ we तो had like a खार group वगैरह birthday. लिखाया था बर्थडे के ऊपर, खार स्टेशन वगैरह कुछ तो सबके इनिशियल्स जोड़े थे और राइट फिर राइट और राइट। फिर दे वर लिविंग फॉर इंडिया ट्रिप, तो Okay, okay, हमने okay, okay. हमने रंगा का, फिर I इसका think मेरा था, स्वप्निल का रंगा का और और कोई दो तो लोगों था का क्या? हमने साथ में ऐसे हम्म सेलिब्रेट किया था। और करेक्ट तो लोग करेक्ट। जिनका नाम नहीं लेंगे अभी अब। और उसके कोविड के बाद टाइम पे भी मास्क पहन के क्या बोल रहे हैं राधा? हाँ, व्हाट सब राधा? लोग कोविड के टाइम पे भी सब लोग मास्क पहन के लेकिन बर्थडे केक लेके Yes. लेकिन जाते थे। हाँ That was like I have a clip where I think this you guys celebrated my birthday during COVID, and the stupidity was we had a cake और तुमने कैंडल्स लगाए थे और मुझे मास्क निकाल के ब्लो करने को बोला एंड देन वापस मास्क। I was about to say that. अरे सीख रहे थे रे स्वप्निल। हाँ, और मतलब मास्क ऐसा कर सकता था ना, तू भी मतलब मास्क निकाल के। आई रिमेम्बर, पर थोड़ा एक सेलिब्रेशन थोड़ा महंगा पड़ा था। लाइक वरद का बर्थडे था एंड आई वाज सपोज टू गेट अ केक एंड मुझे तभी कार रेंट करनी पड़ी थी बिकॉज बाय देन वी हैड रियलाइज्ड कि
अपने आजू बाजू में भी केक्स इजीली इतना एक्सेसिबल नहीं थे. द ओनली वन वाज आइसक्रीम केक. But then we'd grown over it and we wanted to get cakes. So bakeries the thode bahut, so we'd found one. And I was supposed to go, and that day it was raining. So even though I had everything, I did get drenched. Thoda, and since I was renting a car, I was with my passport. तो पासपोर्ट के काफी एज ट्रिम्स और ये पूरे कलर लीक हुए थे ऑन टू, लाइक माई वीजा वॉज वेरी colorful. So the passport had deformed a little. जैसे पानी में डाल के आप कुछ पेपर रखोगे, deforms. So it was like, मतलब it didn't cause any issues, but I used to get a side eye every time I would meet an immigration officer, both in India and the US. But again, I think where this grew closer was the common sentiment कि दोस्त का बर्थडे है, उसके लिए कुछ भी करेंगे, we'll make sure that the person feels special, and that's what I think connected us or got us together even more. सही है, सही है. एंड एक पॉटलक का मैं इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है अभी कि कलिनरी डिजास्टर, जैसे तुमने बोला मिर्ची डालते थे, तो हमारे वक्त एक डिजास्टर का मेरे को याद आता है कि हम बोले कि इस टाइम कुंग पाव पोटेटो बनाना है, कुछ आना अलग Oh एक्सपीरियंस बनाना है. God, तो that gave हमने me trauma. I know पूरा why Swapnil did this. इसके बाद स्वप्निल को चांस मिलेगा. तो हमने कुंग पाव पोटैटो बनाने का डिसाइड किया था. तो धवल और मैं और रंगा हम शॉपिंग करने गए थे, पहले से सॉस वगैरह जो कुंग पाव के लिए चाहिए वो सब लेकर आए. हाँ, याद है. एंड पूरा मतलब, और दिशान के साथ रहने के बाद और यश के साथ रहने के बाद वी स्टार्टेड रीडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज हमको इंश्योर करना था कि उसमें एग वगैरह नहीं है वगैरह. तो वी गॉट दैट होल लाइक इंग्रेडिएंट्स, पूरा डिश बनाने का स्टार्ट कर दिया. एंड यश बिकॉज इज जैन, वो नहीं खाने वाला था, पर उसको ऐसा बोला अरे क्या है इंग्रेडिएंट्स, तो हमारा डिश ऑलमोस्ट रेडी था, ठीक है. तो उसने देखा तो हमको बोला कि तुमने इंग्रेडिएंट्स देखे थे क्या लेने से पहले. बोला हाँ लिखा तो है कि कंटेंट्स ग्लूटेन फ्री या तो पता नहीं क्या सॉस में लिखा था. एंड ये पर फिर बोला ऊपर पढ़ा क्या तुमने. तो ऊपर देखते जा रहे तो बोला ऑयस्टर है, फिर फिश है, फिश ऑयल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बोला अरे ये तो देखा नहीं. एंड लकीली किसी ने भी ड्यूरिंग द, बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस, तो किसी ने भी पूरा प्रिपरेशन के वक्त टेस्ट नहीं किया था. तो पूरा का पूरा बना के साइड पर रख दिया. एंड देन यू गाइस एंजॉयड इट, जो भी खाते हो तुम बहुत लोग. मस्त बना था. पर हम लोग बोले कि भाई so that was a big disaster from our side, but yeah, that was one thing that I wanted to bring up during our potluck discussion. Yeah, I think हमारा like अभिजीत और मेरा कुकिंग का बहुत मतलब आदत है, तो we always used to decide कि कुछ तो नया बनाना every potluck. We can't repeat the dish. Yeah. And I'm sure like people used to like look forward to क्या आ रहा है 345 साल का. हम हमारा like we were one of generally बाकी के लोग बताते थे कि we are making this, we are making Yeah. this, so everybody knew. But we were like हम नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट वहां पे खोलेंगे जो पेश कुछ बनाना करेंगे. है, पेश करेंगे. और ऐसा I think this was like I think fourth year or something, and we were like already made so many dishes by that time. तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार ना हम रसमलाई बनाते हैं, रसगुल्ला रसमलाई समथिंग लाइक दैट. एंड बनाएंगे वो भी रसमलाई, बनाएंगे वो भी स्क्रैच से. तो 2 गैलन दूध लेके आया, उसको अरे कुकर में उबाल के पूरा हम पनीर वनीर बनाया, उसके बॉल्स बनाने लगे. एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं तो बनाएगा. अभिजीत को शायद पता था कि नहीं बनने वाला है, उसने साइड में उसका गुलाब जामुन बना लिया था कि एज अ बैकअप कुछ तो होना चाहिए करके. No, I was focusing on milk, जो रसमलाई जिसमें हाँ जाने वाली थी. जाने वाला, तो हाँ करेक्ट. मेरा जॉब वो था, and Swapnil was going to take care of the रसमलाई rasgullas. के बॉल्स. हाँ. मैंने उसको उतना मतलब सब 2 घंटा प्रोसेस करके पनीर बनाया, उसके बॉल्स बनाया. एंड देन as soon as I put those balls in boiling, it just dissolved. मैम थोड़ा सा रसगुल्ला मिस्टेक बनाने हो का गया था, टेस्ट अच्छा गलती था से क्या? थोड़ा सा मिस्टेक इन द नहीं हमने रेसिपी. पेश किया ही नहीं था फिर. Then we पेश just नहीं किया. पेश नहीं वो किया. आया ही नहीं, we नहीं. had actually done this. हमने वो गुलाब जामुन वो दूध में मिल्क डाल में के डाल ऐसे दिया. ऐसे, हाँ, हाँ. लाइक गुलाब उसका जामुन उससे रबड़ी मेरे को जैसा ये बनाया अपन था. बात करेंगे इन पर आवर फिर नेक्स्ट एपिसोड कौस्तभ कौस्तभ का. हाँ. सबको इतना एंथुजियाज्म है, पूरा ऐसा उसका वो माइलो अपार्टमेंट में पब्लिक को भर भर के बुलाया और सब आके बैठे हैं कि अभी खाने मिलेगा रसगुल्ला. बात करेंगे उसके बारे में. हाँ.
And moving to our last रसगुल्ला और मैक्रून दो चीज Macaroons. that हाँ, are मैकरन बहुत still अच्छे बने वो थे फर्स्ट बताएगा में। उसके सब सारे एक्सपीरियंसेस कुकिंग के एपिसोड में एक कुकिंग का बताएगा, एपिसोड बनता है हाँ। बनता है, उस पर बात करेंगे। और यहाँ पे आई थिंक लास्ट टू थिंग्स जिसके बारे में बात करना था, एक था कि सेलिब्रेशन में हम काफ़ी छोटे मोटे हम बात कर रहे सेलिब्रेट करते थे, फिर डिफेंस जो लास्ट स्टेप है पीएचडी का, और उसके बाद जॉब मिलना। तो ये एक चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे। एंड उसके बाद like looking back, what was your most cherished moment, and what advice you have for the current students as well as जो future में आएंगे for doing PhD or masters? So we'll talk about that. So let's start with like defense and job, getting a job. How did you celebrate, and what were your like thoughts and moments during that time? So at least on our end, maybe I can generalize thoda for Swapnil, Harshal, me, and maybe a few of you guys too. But we would say that we were COVID pass outs. So I remember this year, jab COVID was like being discovered and it was going to be the thing. And that was also the year when Swapnil, Harshan, and I knew कि हम graduate होंगे. But then all plans got pushed because jobs ही नहीं थे market में. So for us it was हर दिन every day it was like कुछ open हो रहा है क्या, कुछ applications किए क्या, and कुछ contacts के through पता चला है क्या. So when we were done with our defense and like obviously we knew उसके पहले की job लग गई है because it was a time when you couldn't think about a defense before you had a job क्योंकि it was थोड़ा mysterious time था, पता नहीं क्या कैसे होगा, like industry was also figuring out things on its own. But जब हुआ था तब it was very very big relief. So as usual, a lot of you might have attended open defense section जो था, उसके बाद जो closed defense हुआ. But then once the results were out, I remember everyone had come over to the office. फिर ऑफिस में थोड़े celebrations चालू हुए, and then as usual evening में तो पूरा plan बना ही था. And then by then 5:35 was like our new celebration place. तो वहाँ पे 3:45. नहीं 5:45 was by only the 45. end defense के वक्त हाँ 3:45 5:35 ये हो गया था. And then वहाँ पे फिर crest view में जो celebrations किए थे, oh my god, पूरी almost full evening we were celebrating and celebrating the person, celebrating their achievements, and I'm just talking about their journeys. One thing that I would say that I thoroughly enjoyed was all celebrations big and small, and that's what I would recommend people coming in to do as well. There will be times where you will feel lonely, especially at the start, and certain situations where you feel that maybe you are a little uncomfortable sharing things with the group, but having a set of friends that you know you can trust and you can talk, and no matter whatever the situation is, um, knowing that they will be there to listen to you and get you out of it is I think a big boon. And that's something that I share, that bond with these people even outside of grad school now. I think on a minimum, I think 4 साल पहले तो निकले हैं, but still we continue that same bond. I can pick up a call, like pick up my phone, call anyone on this group and share whatever I want to, even though they are not with me. So I think वो जो bonds बने हैं, then they go a long way, not just helping you navigate through um, good and bad situations and experiences that you may have while you're in the university, but outside of it. So, I think thank you. yeah, one thing I would like to add is like when the group is people you are with are so close is when as Bajit said, like we were all looking for jobs. It was a tough time, right? And before defense, I think defense was something we even knew we got a job and we are going ahead. But before that, finding that job and getting rejections or even not getting interviews, and that was a very difficult time. And
even when like you finally get some positive news, you feel good about that. But the fact that your friends are still, stressed about it, and then you're still looking into it. So the moment when everybody got a job and we were like, that was like, we feel really happy about everything. Like, of course, individually when we get job and we feel happy about it is one aspect, but when as a group, all your friends and colleagues, they've got getting the job they want and job they like, that's when the celebration became even more like happy, and like you enjoyed it on a different scale. So that's when you realize what the importance of having such close group to live for like so many, like for 5-6 years together, and then that's really important whenever you're coming out and doing anything, be it a education, be it a job here. Ranga, you want? सेलिब्रेशन से है कि सबका सेलिब्रेशन तो हुआ लाइक टू एन एक्सटेंट बिकॉज मेरा डिफेंस का अभी भी याद है लाइक पीपल फ्लू इन पीपल ड्रोव वी ऑल Yes. मेट एट अ कॉमन पॉइंट बिकॉज तब तक आधे लोग निकल गए थे पर्ड्यू सबसे से महंगा वाला तेरा ही था, हाँ मतलब मॉनिटरी it वाइज was इफीसी. it was not just celebration, it was also a trip. तो ट्रिप, वो उसके बारे में यस यस, ट्रिप में बात करेंगे या एग्जैक्टली कि बट मैं ये बोलना चाहता था कि एक सेलिब्रेशन तो नहीं बनी जो दिशान शाह की है, वो जो बनेगी बनेगी रीसेंट बनेगी। ग्रेजुएट है, तो सेलिब्रेशंस तो चालू रहेंगे बट बहाना चाहिए अभी बस मिलने के लिए। सेलिब्रेट करने का, यस, मिलने का. तो दिशान शाह तुम मतलब तैयार रहो. तैयार रहो. Absolutely. Looking forward to that. Dishan also had a different, like his PhD, as he was mentioning, थोड़ा extend हो गया. But then वो ऐसा लोन वॉरियर है, आई सी अपने सब में ऐसे वो है, राधा दे आर लोन वॉरियर्स, ऐसा अपना अपना स्ट्रगल जो भी है लड़ते रहते हैं एंड सेलिब्रेट भी करते रहते हैं. हम मेक श्योर करते हैं कि वो लोग सेलिब्रेट भी करें अपने साथ. बट इट्स फन, राइट? सो या, एनी your experiences and suggestions for coming generations? Radha, you want to go ahead? I'll go ahead. Dishan, you can say, yeah. Okay. I think Radha is like Radha is like मेरे जूनियर्स को मैं क्या ही बोलूं, उनको तो सब आता है पहले से. क्या ही तू लोग आओ बस. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ बस. आ जाओ बस, स्ट्रगल करते हुए देखो लोगों को. हम मजा लो. ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, I it's a would joke, say yeah, like, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, राइट? तो Correct. like we can give advice, but that doesn't mean like whoever comes next, like they'll have like similar set of Yes, experiences absolutely, as we absolutely. do. It will be a completely new journey for them too. Right. Yes. Yeah. The only thing is like it's not meant as an advice, but more or less like just sharing our experiences. Yeah, And absolutely. yeah. Yeah, true. Agreed, but that's what I think we wanted to do through this, right? Through this podcast, talk about how we've benefited from having these shared life experiences, so that people who come in value that and work towards it. Thoda. Yeah, Dishan. Go ahead. Yeah, I was just going to say that anyway, PhD is a long journey, so there will be setbacks at times, right? And we probably will talk about it in detail in some other episode about our experiences, both positives and negatives, in terms of the entire journey, in terms of academics doing PhD. But I think having a group of friends who are there for you, especially when you are going through like a setback, it helps a lot. Celebrations are very important, and that keeps your spirits up. But then having people who are there for you when things are not going so well is also important. And I think I got very lucky that we all had great group of friends with us who were there. So you just have to keep grinding. It's a process. Hang in there. And you have to hang in there, and you'll reach there eventually. Everyone does. But it helps to have a group of people who you can rely on. And kuch nahi to at least they try and lighten the mood, so that also helps. You have to learn, Dishan, you have to learn to let it go.
वो बोलते हैं ना कि क्या सफर में धूप तो वैसे होगी, धूप होगी। चल सको तो चल चलो। सको तो चलो, क्या बात है. But On having that a note, like positive set of friends also helps, na? Ki, I remember always like Abhijit especially, I used to talk a lot with Abhijit about even when I was starting, just uh, getting a sounding board कि कैसे करना ये सब चीज, and also giving like always helping you positively push through with the difficulties. So all these help, and at the end you celebrate all the things that we have gone through, and you just like think of all things and say कि अभी next experience क्या हो सकता है लोगों का. So it is a nice way to like celebrate the whole experience. Yeah. I think वो तो हम अभी भी करते हैं, which is I very like I think हमारा bonding is like survived even after so many years after leaving Purdue. Like अभी भी we talk about major like अगर कुछ major चल रहा है कोई गाड़ी या घर का ये कर बाइक लो, we करते all हैं, हाँ बाइक का कैसे करना है, we still talk to each other. अभी जो लोग जिन्होंने दिवालियां ज्यादा देखी होंगी उनको ज्यादा पता होगा, तो बड़ों का आशीर्वाद तो रहना ही है. एक चीज मैं मेंशन जो करना चाहता हूँ कि हम ये सारे सेलिब्रेशंस आई थिंक कौस्तभ ने स्टार्ट किया था. वी लाइक ऑल दिस सेलिब्रेशंस में स्पेशली जब बर्थडे आता है तो हम एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर्स पूछते थे कि तूने तीन या तो तेरे तीन मिस्टेक्स क्या थे या तो तेरे तीन प्राउडेस्ट मोमेंट्स क्या थे एक्सेट्रा, दोस काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन के लिए काफी हेल्पफुल थे वो सारे क्वेश्चंस. एंड हम उसके That बारे was में Coffee सोचते with थे. Kaustubh sir. कॉफी विद Coffee with कौस्तभ. एंड देन वी स्टार्टेड दैट हर एक के बर्थडे पे वी स्टार्टेड आस्किंग कि भाई तू बता बता सोच. एंड देन आफ्टर सम टाइम कि भाई मेरा बर्थडे आ रहा है, सोचना पड़ेगा. पीपल आर गोइंग सोचना टू पड़ेगा आस्क मी क्या करना. क्वेश्चंस. तो वो एक अच्छा एक ये था ट्रेडिशन जैसे सेट किया था. स्टार्टेड इन लाइक 2 3 2 2 years और सो डाउन द लाइन इन आवर पीएचडी जर्नी. तो हम ऐसे खुद को ऐसा रिट्रोस्पेक्ट में जाके सोचते हैं कि भाई मैंने ऐसे क्या किया है, अचीवमेंट्स क्या है. तो काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेडिशंस हमने सेट किए एज वी स्पोक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, राइट. एंड डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट लाइक अगर तुम्हारा पेपर पब्लिश हो जाए या फिर यू आर सबमिट भी कर दो तुम, बर्थडेज है, फेस्टिवल्स है. आई थिंक ये सारी चीज़ों को वी हैव टू सेलिब्रेट इट इन लाइक छोटे सेलिब्रेशंस बड़े सेलिब्रेशन लाइक जिस स्केल पे तुम कर सको. बट द मेन थिंग इज डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट विथ योर फ्रेंड्स हु आर योर फैमिली इन यूएस. तो आई थिंक दिस वाज आई थिंक प्रिटी इम्प्रेसिव एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट हमने यहाँ पे बनाया है दैट वुड बी यूजफुल फॉर पीपल हु आर कमिंग. So it would be very helpful for new excellent day, man. generation who will be joining the PhD programs or masters or who are coming to US. And yeah, so I think it's great that we spoke about celebrations. And I think आगे के पॉडकास्ट में आई थिंक एज वी मेंशन राइट कुकिंग के बारे में हमको बातें करनी है. ट्रिप्स हमने जो अलग अलग बहुत सारी प्लानिंग की है एग्जीक्यूट की है तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. एंड आई थिंक डू लेट अस नो कि और हमें क्या कंटेंट बनाना चाहिए, क्या सुनना चाहेंगे अबाउट पीएचडी जर्नी और एनी अदर थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू नो फ्रॉम अस. So thank you all for listening and thank you to my panel for providing with a lot of insightful and amazing content and stories from their PhD experiences. So thank you all. So for more content, like, comment, subscribe, and share.